आपको स्टीरियोटाइप से देख नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने देखा कुछ डॉक्टर्स होते हैं वो डॉक्टर ही बन के हर चीज डॉक्टर की तरह करते हैं। Exactly. तो एक जमाने में आई यूज्ड टू फील लाइक इट वाज द बिगेस्ट बर्डन ऑन मी। मैंने कहा था यार मेरे पास ADHD है, मुझे ADHD है। लेबलिंग समथिंग इज बैड एंड गुड इज वेरी कन्वेंशनल, इट्स वेरी आउटडेटेड। आपकी पर्सनालिटी, आप जितने एक्सपीरियंसेस दोगे आपकी पर्सनालिटी एलिवेट होगी। बिल्कुल सही, आप में तो कॉन्फिडेंस आएगा, 100%. आपका एटीट्यूड दूसरों की तरफ चेंज होगा। प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, सिर्फ अपने आप से नहीं, अपने आप से तो बहुत जरूरी है। आप पता है क्या बात है तेरी, जब आप अपने आप से प्यार नहीं करते ना, दूसरों से नफरत करते हो। Hello and welcome back to One on One by TB. Your host Tehreem Basalat, and the guest that I have today is Dr. Waqas Ahmed Usmani, MD. He's a doctor basically, but हम उनसे डॉक्टरी के अलावा बहुत सारी लाइफ लेसन्स पे बातें करेंगे जो उन्होंने ज़िंदगी में ओवर द टाइम चीज़ें सीखी हैं, एंड ही इज़ विलिंग टू शेयर विद अस ताकि हम उनसे सीख सकें फर्दर, एंड जो भी चीज़ें हैं हम उनको फर्दर कॉन्कर कर सकें. सो देयर इज़ नो बेटर पर्सन टू डिस्क्राइब एंड टेल अबाउट हिमसेल्फ देन वकास. सो हेलो, अस्सलाम वालेकुम वकास, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, it's really nice meeting you, Tehreem. Same here. And So yeah, it's such a wonderful set, honestly, like blew my expectations out. Thank you so much, and it's really amazing to have you as well, because I know कि जो हमारे viewers हैं, whoever is watching the podcast will be taking out some serious good advice and tips from here. So can you tell them, the people who are listening to you for the first time, कि who you are and तुम क्या करते हो? Right on. So, as you introduced me, my name is Waqas Ahmed Usmani, Dr. Waqas Ahmed Usmani, MD. Honestly, abhi bhi I feel like it's really hard for me to absorb the MD part because it's like अभी मुझे खुद यकीन नहीं होता है डॉक्टर साहब वगैरह बोलते हैं, but I feel like more especially for me, इस बात का मैं I guess what kind of makes me feel like a different thing is कि मैं जो है ना डॉक्टर के अलावा भी बहुत चीजें अपने आप को समझता हूँ। तो मैं जो सोसाइटी को I feel like which is honestly like we start talking about life lessons, so I think शुरू में मैं बात कर देता हूँ which just start from the topic मेरे दिमाग में आई। For sure, please go ahead. तो बात ये कि I feel like कि हमें जो है ना कभी भी आपको stereotype से देख नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने देखा कुछ डॉक्टर्स होते हैं वो डॉक्टर ही बन के हर चीज डॉक्टर की तरह करते हैं। Exactly. So you can be so much more than just your profession. That's just a part of your life. Yes. And I mean, if you're really dedicated and passionate about that particular part, then sure, you can make it like your entire personality. But I feel like we as humans, we should not put limitations on ourselves. And I feel more so than our own limitations is the limitation of the people around us. Makes sense. कि वो जब आपको डॉक्टर समझते हैं ना, तो फिर आप कहते हैं मेरे ऊपर बर्डन आ गया कि मैं उसी तरह एक्ट करूं और उसी लेंस से देखूं। तो I feel like introduction में I'm a doctor, but I feel like more so I'm so much more. For sure. And I don't just constrain myself to being a doctor. That's true. काम पे काम है, बिल्कुल, लेकिन and that's what I believe, because तुमने सिर्फ अपने आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हुआ, you are so much more that I also know about कि तुम्हारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो तुमने लर्न किए हैं, it's not just from your doctor या उसके एक्सपीरियंसेस, right? So we will be talking about कि तुम apart from doctor क्या क्या चीज़ें करते हो. तो is there something that you would like to start with? Yeah, honestly, मैं हर चीज़ करता हूँ और that is what I feel kind of really help me get to these experiences that we're going to talk about. Yeah, for sure. कि यार मेरा बस ये होता है कि मैं अपने हाथ किसी चीज के अंदर डालूं and I'm going to see along the way if it suits me, if it doesn't suit me. और मैं समझता हूँ लाइफ में जब आपके फेलियर्स होते हैं, जितने ज्यादा आप अकाउंट करते हो उतने आप डेवलप होते हो. Okay. तो that's true. Yeah. आप जितने फेल होते हो ना आप, and I feel like that is what separates people who are like more intellectually developed or more advanced or elevated. कि वो ज्यादातर उनका ये नहीं होता कि वो ज्यादा फेल होते हैं चीजों के अंदर, उनके अंदर बस ये चीज होती है कि they just want to dive into stuff and they want to experience more. Makes sense. That is which is something I feel like alhamdulillah, like I think बचपन से मेरे अंदर बस एक चुल थी कि मैं जो ना इस चीज को हाथ मारूं, उस चीज के अंदर गुस्से में कोई इंटरेस्टिंग चीज देखता था, मैं कहता था मुझे भी करनी है. Okay. सही है. और बहुत सारी चीजें सूट नहीं करती थी, बहुत सारी चीजों में फेल होता था, लेकिन that's how you learn. लेकिन at the end exactly lessons, right? Lessons, experiences. And then I feel like यहाँ पे बहुत important topic आया. I think पहले आप ये बताना चाहो कि हमारा structure is like really candid, right? Yes, for sure. So to all my viewers, one thing which is very important, this is a relatively different kind of a podcast that we are doing. यहाँ पे हम बिल्कुल candid conversation कर रहे हैं वकास के साथ, because we will be talking about his different experiences and what is a better way to have like a very candid conversation about it, जहाँ पे whatever comes to his mind and वो हमें share कर सकते हैं. We will be discussing that. But remember, हम लोग अपनी podcast स्टार्ट करने से पहले we were talking about the ADHD factor which people nowadays feel like कि हर किसी के अंदर है. What do you think about that? यार ADHD का तो मेरे लिहाज से ये है कि I feel like जैसे आपको मैं बता रहा था कि I told her which is obviously a personal thing to me, but I guess it's not that like I would like definitely like to impart
my experience with this कि आजकल जैसे मुझे तो पता है मुझे ADHD और आपने बोला कि यार आजकल बहुत लोगों को होता है. Yeah. So I was like to Tareem कि I kind of disagree with that. Yeah. And it's mostly because it's a niche and people just pick up lingo and they're like मुझे भी है. So that is not ADHD. आजकल असल में हुआ ये है कि because हमारा this is also Yeah. I feel interesting Yeah. topic जिस पे हम लाइव करें. Yeah. कि आजकल इतना जो ना हमारे attention span कम हो गया because of what? Because of the dopamine. Because of social media. Social media, we do. Right? क्योंकि हमारी रील्स आती हैं तो 5 सेकंड अब और दिस इज साइंस ऐसा ही बैक है। जस्ट बाय द वे रिसर्च हुई है इसके बारे 100% में कि पुराने जमाने में लाइक इवन 10 इयर्स बैक our attention span अगर हमारा 1 मिनट था तो अब वो आधा हो गया. Yeah, that's सही है और 1 मिनट नहीं कम ही था. कम ही है, जो yeah. आगे 10 सेकंड था I won't like just like say That's a true. number because I don't want to like Makes sense. but it's literally half Yeah, and yeah. it's getting lesser more so. Okay. क्योंकि अब ये है कि हमें अब लाइक 5 सेकंड की रील या हमें 3 सेकंड की रील चाहिए. बिल्कुल. तो आप यार मैंने ये देखा है कि सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा डिफरेंस आया है. सही है रिसेंट डेज में खुद और ये मैं चीजें जो ना खुद ही जो मेरे सांस होती है ना उसी वक्त होती है जब मैं स्क्रीन के अवे होता हूँ. Okay. सही है. तो एक जमाना था मेरा जब मैं अपने लाइक यू सेड मैं डॉक्टर हूँ तो उसमें भी आई फील है कि एक जमाना था मैंने सारा सोशल मीडिया वगैरह बंद कर दिया था. मैं नहीं जाता था मैं स्टेप्स के लिए पढ़ रहा था तो पूरा दिन मैं अकेला बैठता था मोबाइल बंद होता था और जब मैं खाना खा रहा था मैंने एक्टिवली डिसीजन लिया था कि मैं स्क्रीन टाइम लूंगा ही. Okay. और जब मैं खाना भी खा रहा था मैं बस अकेला बैठ के मेरे वहाँ लाइब्रेरी में ऐसी लाइब्रेरी मैं चूज की थी जहाँ पे कोई दोस्त नहीं था बिल्कुल अकेला होता था पूरा दिन. सही है. I was really I feel like even though I was so alone but I wasn't lonely. Okay. And why? Because I connected with my own self. Even खाना भी जब खा रहा होता था ना मैं सोच रहा होता और मैंने उस जमाने में मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना पीछे चला गया हूँ with my own self क्योंकि मैं इतना सोशल मीडिया यूज करता था उससे पहले एकदम से जब मैं ट्रांजिशन में आया मैंने कहा यार शीश I miss talking to myself and I miss like hearing my thoughts. Makes sense. और आजकल I feel like ये यार तेरी एक बहुत बड़ा फर्क है as compared to पुराने जमाने में कि पहले लोगों के पास हालांकि आप देखो आज के टेक्नोलॉजी ने क्या किया है कि चीजें एफिशिएंट कर दी हैं. बिल्कुल. और जिस टाइम में आपको वॉशिंग में ज्यादा टाइम लगता था वॉशिंग मशीन आ गई है खाने में अब आपके वो आ गए. So you have more time on the hand. But what do we do with that time? We basically consume content. Exactly. Like yeah. तो हम अब उस we time keep our minds busy basically. Yeah. वैसे हमारे जो इनिशियली टाइम जो हमें टाइम जो ह्यूमन एडवांसमेंट है और जो टेक्नोलॉजी आगे जा रही है वो इसलिए आगे जा रही थी कि इंसानों को ज्यादा टाइम मिले टू रिलैक्स. Makes sense. Right? ऐसा ही है. To make things easier. Yeah. Exactly. Yeah. And to kind of like do things that are more purposeful. Yes. But what are we using that time on? Just on social media, on reels, on brain rot. Brain rot, dopamine hits, and all of that. Exactly. Makes sense, 100%. So I feel like what's changed, just like coming back to the topic, कि अब यार कोई बंदा जो है ना बैठ के कभी भी आप देखना है तरीन के 5 सेकंड भी अपनी सोचों के साथ नहीं बैठेगा. अगर तो 5-10 सेकंड मिलेंगे ना मोबाइल खोलेगा रील देखना और जो ना exactly वो कभी भी अपनी he would just try to do everything to escape from their thoughts on his mind. Yep. और I feel like ये बहुत एक इम्पैक्ट है सोसाइटी के अंदर और पता है इसका लेवरेज कौन लेता है? कौन? Like इसका लेवरेज लेते हैं brands? the monopoly जो ऊपर आपका जो अंकल सैम और whoever you want to call the bridge the guys who are controlling everything. तो वो क्या करते हैं सोशल मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं. अब I feel like it's no secret कि there are algorithms and there are things that are like I would say कि आप पे चीजें पुश कर रही होती है. बिल्कुल. और वो जो ना आप एक दफा फॉर एग्जांपल आप कोई चीज देखोगे जिससे आप अग्री नहीं करते पहली दफा सोशल मीडिया पे देखोगे आप अग्री नहीं करोगे आप कहोगे छी आगे जाओगे. अगली दफा वापस आएगा ना थोड़ा डिसेंसिटाइज हो जाओगे आप रोकोगे आप पढ़ोगे. और इसी तरह करके ना आपको सोशल मीडिया और आपको जो आपका सारा एल्गोरिथम आपको चीजें इंस्टिगेट करता है और आप पे बिलीव करवाता है. That is how I feel society is changing slowly. That's true. और who is controlling it? किसके आइडियाज सब absorb कर रहे हैं? The monopoly, obviously. जो ऊपर से जो आपको पुश कर रहे हैं. ऊपर से आइडियाज पुश कर रहे हैं वही अब आज तक सोसाइटी एक्सेप्ट करी जा रही है. और ये तो अभी स्टार्ट है. अब आगे सोचो 50 साल के अंदर अभी देखो चलो हमने टेक्नोलॉजी थोड़ा बहुत पहले के जमाना भी देखा तो हमें पता डिफरेंस किया है. Exactly. अब जो बच्चे आएंगे जो कि पहले ही इस मोमेंट में हो रहे हैं कि जब आपका ना ही कोई सोचने का वक्त है ना ही कोई It's just getting worse and worse. That's true. 100%. उनको तो पता भी नहीं होगा कि बैठ के अपने ओन थिंकिंग अपने ओन आइडियाज क्या होते हैं. और अब ये भी देखो सबसे दुनिया की जो चेंजेस आई हैं बड़ी एडवांसमेंट्स हुई हैं जो लोगों ने दुनिया बदली है वो क्यों बदली है क्योंकि उनके आइडियाज डिफरेंट थे. Different from the normal. और अंकल सैम क्या कह रहे हैं let's just say pushing the same ideas. Same ideas. Makes sense. Which are their ideas and which they want. They want because individualism रहा नहीं है and I जो तुमने इतनी important बात करी है to be alone with yourself that specifically. Why do you think people are scared to be alone with themselves like their thoughts and all of that? People I feel are so scared to be different now
and they just feel like they see something that's cool on social media, or they see some influencer, right? And they're like, yeah, he's so nice, he's so cool. Comparison. Exactly. Yeah. फिर जो ना उसी रेस में पड़ जाते हैं कि अपने आप को अपनी इंडिविजुअलिटी भूल जाते हैं, Yeah. और जो सोशल मीडिया बिलीव करा रहा होता है कि यार ये चीज कूल है आजकल, बिल्कुल। तो आप भी जो ना उसी चीज के अंदर उसी साइकिल में पड़ जाओगे, कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली। Makes sense. ऐसा नहीं होता कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि दे नॉट एक्टिवली मेकिंग डिसीजंस, Yeah. लेकिन एक बात का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि जो चीजें हम इवन विदाउट थिंकिंग एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, Yeah. वो हमें सबकॉन्शियस में इम्पैक्ट कर रही होती है। That's true. और इसको डिफीट करने का एक ही तरीका है, क्या आपको अपने आप को बहुत अच्छा पता होना चाहिए कि आप कौन हो। Self realization and अपने बारे में what would you say, like self I think self realization is the word, yeah. अपने आप को जब अच्छे से जानते हो ना, फिर आप अपनी सबकॉन्शियस को कंट्रोल कर सकते हो या अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। कॉन्शियस चीजें तो आपको पता होती है, बिल्कुल ऐसा ही है, yeah. लेकिन सबकॉन्शियस होती है ना, वो आपको पता नहीं होती, तो उन सिर्फ उस वक्त आप कंट्रोल कर सकते हो जब अपने आप से कनेक्टेड हो। That's true. And that's another thing we were talking about before our podcast, that you told me कि तुमने self realization over the time इतनी ज़्यादा सीखी है that helps you being who you are today, right? Yeah. So मैं जो ना I feel like I would want to first wrap up the ADHD वाला topic. For sure. तो ADHD में ये सीन है, like हमने पूरी बात की, उसका मुद्दा थोड़ा निकालते हैं। तो मुद्दे का ये सीन है कि हमारा सब ADHD क्यों कहते हैं, क्योंकि वो काम, it's not ADHD, it's actually just distraction, it's just like less attention span. Yes. And ADHD does entail कि जो ADHD वाले होते हैं, जैसे मैं अपने आप को बोल रहा हूँ, तो उनका भी होता है, but there's so much more. Yep. There's so much more. It's not just distractibility and loss Makes of sense. focus. Yeah. It's also like a lot more. जैसे for example मैं सोचूंगा, which also kind of leads me to another topic that I want to talk about, which is very interesting. I really want to talk about this with you guys. Yeah, please. तो जैसे ADHD के अंदर personally ये होता है कि आपका दिमाग is kind of racing, right? Yes. And बहुत रेस कर रहा होता है. Multiple thoughts at single like एक time पे आ रही होती हैं आपको, बिल्कुल. Exactly, right? It's like I don't know, like a storm, but like But the thing is, here's the thing. Also और भी चीजें होती हैं, ADHD की टाइप्स होती हैं, impulsive होती है, हाइपर एक्टिव होती है, हाइपर एक्टिविटी में बहुत ज्यादा बंदा फिजिट कर रहा होता है, मूव अराउंड कर रहा होता है, और बाकी और भी चीजें होती है, राइट? दैट इज एक्चुअली ADHD, और वो आपको डायग्नोस एक तो बचपन में ज्यादातर होता है बाहर, और लाइक सिम्टम्स होते हैं उसकी पूरी एक्चुअली एक चार्ट होता है जिस पर आप टिक करके आपको एक्चुअली ADHD होता है। अब लोग वही वाली बात है कि से डिप्रेशन बोलते हैं, मैं डिप्रेस हुआ हूँ, डिप्रेशन जो एक मेडिकल डिप्रेशन है उसकी 14 पॉइंट्स होते हैं, मतलब वो आपको क्राइटेरिया फेल होना चाहिए। Make sense. तो ADHD के भी ये तो लोग बहुत सारा आजकल लिंगो यूज करते हैं कि यार ये फॉर एग्जांपल ये मैंने को हुआ, ये वो हुआ, लेकिन अगर जो मेडिकल तौर पे जो ना आप एक मेडिकल बंदा जो डायग्नोस हुआ या फिर इवन what I mean was actually the case and someone who's just saying ADHD, it's a very different thing. Exactly. I think ये जो बीमारियां हैं बहुत कूल बना दी गई हैं आजकल के ज़माने में कि मुझे OCD है या मुझे ये ADHD हुआ हुआ है या फिर वही डिप्रेशन, एंजाइटी and all of those things until unless they're properly diagnosed. अब मैं आपको इसकी बारे में बताता हूँ। And why I'm saying this is because दोनों के इलाज भी अलग हैं। अब अगर किसी को डिस्ट्रैक्टिविटी ज्यादा हो रही है, स्क्रीन टाइम, तो वो उसका इलाज है कि भाई मैं स्क्रीन टाइम कम करूँ, सीधी सी बात है, दवाइयों पे नहीं आना आपको। अगर मेडिकली है तो फिर क्या करना है? Medicine. But here's where I kind of differ from, I would say, modern day medicine. सही है, मैं खुद डॉक्टर हूँ, लेकिन I feel like हर बंदे को अपने ख्यालात भी होने चाहिए और अपना बिलीव that is what also advances what humanity and medicine के अंदर भी चेंजेस कैसे आए। किसी डॉक्टर ने बोला यार कि ये तरीका सही नहीं है इलाज का, इससे बेहतर तरीका हो सकता है। माइंडसेट आपका अपना खुद का दिमाग होना चाहिए बेसिकली। किसी बात पे ना आपको हर चीज को, आई फील लाइक लाइफ का एक रूल है, किसी चीज को बगैर देखे ना खाओ, अच्छा लगे, लेकिन फिर आप सोचो क्या जो मैंने खाया है वो बना किस तरह है। बिल्कुल सही है, बनाया किसने, और माइंडलेसली चीजें नहीं करनी चाहिए। आप सोचा करो और सही आपको एग्री कर रहे हो, इफ यू थिंक इट्स राइट देन श्योर, बट आल्सो डिफरेंट खानों पे अपोज ना हो। आपने आज ये खा लिया सही है, लेकिन अगर कोई दूसरा बंदा बोले यार कि मेरा खाना भी ट्राई करो, सुनने में कुछ नहीं जा रहा, ऑलवेज ओपिनियंस लिया करो, लोगों की चीज सुनना। इसलिए अभी मैं बोल रहा हूँ, शायद एग्री ना करो, लेकिन सुन लो, शायद आप सीख जाओ, शायद मैं आपसे सीख जाऊँ। That's true, 100%. तो इसी तरह आई फील लाइक आगे बढ़ते हैं, लाइफ चलती है, लेकिन कमिंग बैक टू हियर, जस्ट बाय द वे आई फील लाइक मेरे ADHD इवन पॉडकास्ट पे आ रहा है, जिस तरह मैं टॉपिक्स पे multiple topics are coming into it, but that's completely fine because that's what we're doing. Exactly. So my take on mental illnesses, like you said, OCD, ADHD, it's a very I would say hot take जो कहते हैं, लेकिन साइंस कहती है मेडिकेट करो, मैं इतना बिलीव नहीं करता मेडिकेशन। Okay. What do you believe in then? यार देखो, ये सारी बीमारियां ना आई फील लाइक बहुत they have been there since the ancient of times, कोई नहीं है, लेकिन अभी रिसेंट टाइम्स में साइकोलॉजी ने क्या किया, साइकियाट्री ने
This labels on labels, it. yes. अब ADHD को आप अगर बीमारी कहो, कोई दूसरा बंदा के ये सुपर पावर है. That's true. That's 100% true. अब मैं आपको बताता हूँ अपना. Yeah. तो यार, which also kind of thing makes me think about this other topic that I talk about, but I feel like first I want to wrap this up. Sure. तो ये वाला टॉपिक यार जो मैं आपको इस सुपर पावर की बात कर रहा हूँ, जैसे एक जमाने में I used to feel like it was the biggest burden on me. मैंने कहा था यार मेरे पास ADHD है, मुझे ADHD है, तो जो मैं गलतियां कर रहा हूँ justified है, यहाँ पे मैं कुछ हो नहीं पा रहा, मैं like you know psychs यार, मतलब मेरे दिमाग या फिर मैं क्यों है मुझे ADHD, Makes sense. I'm like paralyzed. जब मैंने सोचा, when I started thinking about it, you know, वो mindset की बात होती है. जब मैंने अपना mindset change किया, मैंने कहा ये तो, और मैंने देखा अपनी लाइफ में रिफ्लेक्ट बैक किया कि मुझे कितना एलिवेट करती है इतने तरीकों से, और मैंने कहा यार कि नहीं, my mind like I said, it works like a Ferrari. Right? अब पता है मसला क्या होता है? अब मैं बताता हूँ मेरी लाइफ किस तरह चेंज हुई है, जो कि एक लाइफ लेसन में बताना चाहूंगा. मेरी लाइफ मैंने एक्चुअली स्विच अराउंड की है. That's true. That's the most important, and I think ये I would like my viewers to listen to this as well. Right. तो यार पहले एक जमाने में जो ना, मतलब obviously पहले मुझे सब कुछ पता नहीं था, फिर मुझे समझ आई मुझे ADHD डायग्नोस हुआ या जो भी, तो उसके बाद फिर even then I was living fine, लेकिन फिर जब थोड़ी जिंदगी का बुरा वक्त आया, तो मैंने बहुत सारी चीजें ब्लेम करने लग गया ADHD पे, अपने सर्कमस्टेंसेस पे, अपनी सराउंडिंग्स पे. सही कि मुझे ADHD ये वो है, मैं इसलिए डील नहीं कर सकता. फिर the way that I got out of it, and just by the way, I just like to make a short point. I feel like even like you know, even the biggest way or the most easiest way to get depressed is victim mode. जब आप अपने आप को विक्टिमाइज कर लेते हैं, तो आप उसी सिचुएशन को अपनी रियलिटी बनाते हैं. That's true. सही है. तो मैं इसकी बात भी बोलूंगा कि जिंदगी और आपकी जिंदगी फिर उसके अलाइन होने लग जाती है. उसी के हिसाब से बिल्कुल ऐसे ही है. सही है. आप जब आपको विक्टिम करेंगे, दुनिया भी आपको विक्टिम बनाएगी. बिल्कुल ऐसे ही है. तो everything will circulate around that. That's true. और आप जो कोई बुरी चीज होगी, आप कहोगे यार ये हुआ है, मैं इस तरह का हूं, तो अगली चीज भी इसी तरह की आपका एटीट्यूड रिफ्लेक्ट कर रहा होगा. बिल्कुल. अब एक विक्टिम होगा, वो ऑब्वियसली कभी कॉन्फिडेंट नहीं होगा, वो बिल्कुल अपने आप को पीछे रखेगा. ही इज नॉट गोना टेक शॉट्स, ही इज नॉट गोना ट्राई डूइंग something innovative or out of the box. Makes sense. So how is he gonna like change something in his life? Exactly. So the mindset shift जो आपने भी बात करी, that's very important. बिल्कुल. For building that. तो just kind of taking it on from there. तो मैं ADHD का बता रहा था, तो मैंने सोचा है कि ठीक है ADHD में क्या होता है, ब्रेन तेज चलती है, which is impairing. और also distracted भी ज्यादा होती है. लेकिन मैंने कहा अब पता है, अब मैंने क्या सोचा, अब मैंने कहा मेरा दिमाग तो तेज बहुत चलता है, लेकिन अब पता है मुझे हिंड्रेंस कहाँ पर आ रही थी. हिंड्रेंस आई थी मेरी बॉडी. सोचता मैं बहुत हूँ, लेकिन मेरी बॉडी इन एक्शन को फॉलो नहीं कर रही. अब फिर मैंने इसका हैक क्या देखा यार, कि लाइफ को तेज जियो, कि जितनी मैं सोचता हूँ ना उतनी चीजें करूंगी. तो फिर आई एम लाइक मे बी थिंग्स विल अलाइन मोर. Okay, uphill. You only went uphill. I found like a way to make it work for me, and now I feel like it's my superpower. Okay. I no longer view it, you know, as a hindrance. I view it that it makes me. I wouldn't say no one's. Yeah, I don't want to say better than other people, but I want to say that also. Better than your own previous self. Exactly. Yes. No, but like, you know, I just kind of viewed. I'm like, okay, and why is it better than other people? It's only better than other people because they're not thinking the same way. The way it's not like I was born different. 100%. अब इसी तरह अगर आप OCD को देख लो, ऑटिज्म को देख लो, हर चीज होती है. इसमें आप ऑटिज्म में भी ये होता है कि आप कुछ चीजों में फोकस हो जाते हैं, कुछ चीजें आपको याद आई थी, नंबर्स कितना बच्चे होते. अब या तो आप बोले यार कि मेरी लाइफ, you know, only look at the negative things, or you can just focus on the positive things and do what, make it work for you. आप उनको देखो ये मेरी strengths ही हैं, अब अपनी strengths पे खेलूंगा. अपनी weaknesses पे क्यों खेलना है? I believe everything is coming together, like the way that you are saying कि self realization, अपना mindset shift आपका, and then this thing कि अपने आप को as a super like mindset shift किया है, strengths पे खेलो. Exactly. आप अपनी strengths identify करो, उन पे गेम खेलो, and ऐसा नहीं है कि आपको पर्सनैलिटी की 10 पार्ट्स बनाने हैं. आप 3 पार्ट बनाओ, लेकिन आपको पता है ये मेरी सबसे सॉलिड स्ट्रेंथ है, उनमें खेलते रहो, स्पैम करो. नई चीजें क्यों चाहिए? 100%. और मैं पता है एक और जस्ट लाइक मेरी एक और चीज भी इस तरह लाइफ में रियलाइज हुई है, which I just want to say it, you know, I feel like it's just me imparting the lessons I've learned, and there are obviously stories behind all of those lessons कि मैंने चीजें सही हैं या मैंने जो चीजों से सीखा हूँ, ये जो मैंने ठोकरें खाई हैं या जो भी. लेकिन अब वो obviously बहुत लंबा हो जाएगा कि मैं सारी स्टोरी डिस्कस करूँ. We would need multiple episodes for that. Exactly. मैं जो ना थोड़ा समराइज करके आप लोगों को बस जो प्रॉपर top of the exactly जो आपको बिल्कुल एक पॉइंट है, मैं आपको वो बताना चाहूँगा. 100%. तो like
wrapping up about this कि तुमने जो पूरा ADHD के बारे में बताया, I believe that's a completely यही वाली nuance है कि अगर आप अपने rather than labeling it, आप अपनी अगर strengths के ऊपर focus करें and take it as a superpower, you can actually bring change into your own life. Similarly, एक और topic है इसी तरह का regarding sugar. But some people basically claim it's even more addictive than cocaine, and some people might be Waqas as well. So can you elaborate on that? कि why do you think that? It's actually really true. Sugar is actually more addictive than cocaine. Yeah. But How so? yeah, because आपकी body, it just kind of starts that sugar rush, it hunts for that glucose. Yeah. Honestly, दोनों kind of similar हैं. बिल्कुल. In the way कि sugar भी आपको stimulate करती है, Yeah. sugar आपको जो ना एक फीलिंग डोपामिन आपका जो ना रिलीज करती है, और That's कोकेन भी ये करती है. ऐसा ही है. लेकिन शुगर इतनी वाइडली अवेलेबल है, कोकेन महंगी है. And वही वाली बात है, the harmless, like the way sugar is presented, even though it is harmful, right? But उसको इतना harmless way में आप market करते हो and everything कि that sugar cane माफिया, exactly. ये पूरी game हुई है. So we should like also talk about that कि how harmful that is, and we should like कितना cut off लोगों को करना चाहिए. We are not saying completely कि आप अपनी diet से निकाल दो उसको, but like can you tell us as a doctor कि what is the right amount? Yeah, please. I'm only here for hot takes, अगर आपको कोई ट्रेडिशनल कन्वेंशनल तरीके से कोई बंदा बोले तो बिल्कुल, there should be another guest here, but because I'm here for hot takes, तो I would say यार कि मैं बहुत एनर्जी ड्रिंक्स पीता हूँ, और मैं इतने सोडास पीता हूँ ना, ये हाल हो गया कि मैं खाना नहीं खाया जाता मुझसे सोडास के बगैर. ये वाला सीन है मेरा. अभी जो है ना, I asked for like tea and तेरी asked me कि कितनी चीनी चाहिए, तो मैंने बोला 3-4 चम्मच. पूछो नहीं, डालते रहो, जब दिल करे तो रुक जाना. That's true. तो अब मैं आपको वो वाला बंदा हूँ कि मैं आपको बता रहा हूँ, and I agree, sugar is bad for your health. सही है, I completely agree. And sugar, I would say diabetes is the #1 killer of the human body. Yes. आपकी एक दफा डायबिटीज हो जाए ना, आपका आहिस्ता आहिस्ता पूरा जिस्म आपका रॉट It's होता है everything अंदर से. starts. आप बाहर, और सबसे डेंजरस क्यों, क्योंकि बाहर से बिल्कुल ठीक होता है, Exactly. अंदर से आपका जिस्म गल रहा होता है. सही. तो डायबिटीज एंड शुगर, that is what it does. It kills you silently. Yeah. But there's a but. The but is that I feel like labeling something as bad and good is very conventional and it's very outdated. Okay. Everything has a positive and a negative effect. 100%. अगर मुझे नींद आ रही है और मैं चाय पीऊँ, मुझे जगा रही है, या मुझे मजा आता है, फॉर एग्जाम्पल एनर्जी ड्रिंक्स पीने में खाने के बगैर, सही है. I can very much stop it. Ideally, I should. Okay. Right? And I mean that is a long-term plan that I have for my health, इंशाल्लाह, कि मैं छोड़ दूंगा बाद में. Yeah. लेकिन अभी जो मेरी justification ये है कि if I'm doing some other things right, Okay. आप जिंदगी में कभी परफेक्ट नहीं कर सकते. आपको अपने escapism ही चाहिए होते हैं. Okay. सही है. Okay. तो आपके nuances होने चाहिए, आपके vices होते हैं. आपको बाकी चीजों पे देखना होता है कि चलो कि मैं एक चीज मुझे गंदी हैबिट है, तो बाकी चीजों पे आपको completely give up नहीं करना होता अपनी health. ये कि अगर एक बुरी चीज कर रहे हो तो सारी ही आप वही कर रहे हो. अब मैं शुगर पीता हूँ, मैं एनर्जी आपको क्या बता रहा हूँ, मैं इतनी स्पैम करता हूँ, लाइक जितने मैं सोडास पीता हूँ, आई फील लाइक कि बहुत मुश्किल है कम्पीट करे. सही, which is not a good thing, but I'm just telling you. But also what I do, I go to the gym, I work out, I play sports, I keep myself active. सही है, and I do so much more where I'm just thinking about my health, I take my vitamins, I'm just thinking about my health in general in other ways, right? तो it somehow balances, क्योंकि जब मैं वर्कआउट करता हूँ, वो करता हूँ, तो I'm not saying there's always ways to be better. Of course. Right? Or but like, I'm sorry, you want to say something? Yeah, I was. I'm sorry, I just keep interrupting. हमारे में good flow है, like. I mean, you were in such a good flow that I didn't want to disturb you, but that's what I was saying कि तुम्हारी फर्स्ट वाली कॉन्वर्सेशन थी, लाइक तुम्हारी पहली बात थी कि सेल्फ रियलाइजेशन. इवन दो यू आर टेलिंग मी कि तुम इतनी ज़्यादा सोडा कंजम्पशन करते हो एंड यू टेक सो मच शुगर, बट द गुड पार्ट इज दैट यू हैव द रियलाइजेशन फॉर इट एंड यू डू प्लान ऑन इवेंचुअली लीविंग दैट. सो यू डू हैव द गुड हैबिट्स विद यू इवन विद द रॉन्ग हैबिट्स दैट यू करेंटली हैव, बट यू डू प्लान ऑन करेक्टिंग दोज इन द फ्यूचर. बट देन देयर आर पीपल जो कि उनको पता है कि गलत हैबिट है, या मे बी उनको पता भी नहीं है, बट दे आर जस्ट डूइंग इट, राइट? सो दैट्स वेयर द डिफरेंस कम्स. डू यू एग्री? बिल्कुल. And just extending on that, I feel like we can make a full circle here with what you said. Okay. By starting from the beginning where I said कि जैसे boxes होते हैं. Yes. कि अब जैसे अनहेल्दी वाला बॉक्स हो गया कि यार मैं अनहेल्दी बंदा हूँ, मैं सोडा पीता हूँ, तो यार फिर मैं आप सोसाइटी आपको उस बॉक्स में डाल रही है कि भाई तू सोडा बहुत पीता है. Yes. आप अपने दिमाग में अपने आप को उसी बॉक्स में डाल देता है कि मैं अनहेल्दी हूँ. अब अनहेल्दी हूँ तो क्या, मैं जिम भी नहीं जाऊंगा, मैं टीवी देखते रहूंगा पूरे दिन बैठ के, मैं वर्कआउट भी नहीं करूंगा, मैं हर गंदा खाना खाऊंगा. तो बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो मैं एक बात बताता हूँ, अच्छी बुरी चीजें हर चीज होती है, लेकिन कभी भी सबसे बड़ी बात होती है मैं आपको बॉक्स में डालूं. अब मैंने इंट्रोडक्शन अपने कराया था कि आई एम ए डॉक्टर एंड आई एम ए डॉक्टर इन द स्टेट्स, आई एम एन एमडी. तो मैं पाकिस्तान में तो हूँ डॉक्टर, लेकिन आल्सो आई एम सर्टिफाइड इन द यूनाइटेड स्टेट्स एंड आई कैन प्रैक्टिस देयर, राइट? माशाल्लाह. तो
बट ऑल्सो आई वुडंट लेट दैट जस्ट कैन लिमिट मी. अब Makes मुझे sense. और भी चीजों का शौक है. 100%. सही है. अब फॉर एग्जांपल आप कर लो कि You are into sports as well. Yeah. मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ. मैं Yeah. स्पोर्ट्स का बहुत शौक है. मैं लिटरली हर क्रिकेट मैच देखता हूँ. Yeah. मैं बहुत इंथुसियास्टिक हूँ. आप समझ लो, चलो फॉर एग्जांपल मैं जिम जाता हूँ. सही है. मैं Yeah. वर्कआउट काफी करता हूँ. Yeah. चलो मैं आपको जनरली एग्जांपल दे रहा हूँ कि चलो आप कह रहे हैं कि कोई फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक थिंकिंग कि कोई नमाज का फॉर एग्जांपल मैं 5 वक्त की नमाजें पढ़ता हूँ. ठीक है. सही है. तहज्जुद भी पढ़ता हूँ. सही है. एंड the way that society would make you think is आप 5 वक्त की नमाजें पढ़ते हो, माशाल्लाह तहज्जुदी हो, तो आपको कोई बुरी चीज नहीं करनी चाहिए. आपको इस तरह होना चाहिए. आपकी दाढ़ी होनी चाहिए. सही है. और Like do all the right things now. हाँ, Yeah. अब आप बॉक्स में डाल दिया. लेकिन व्हाट इफ कि अगर मैं 5 वक्त का नमाजी भी हूँ. सही है. मैं डॉक्टर भी हूँ, वर्कआउट भी करता हूँ, और मैं साथ में बुरे काम भी करता हूँ. ठीक है. सही है. अब मैं इंसान हूँ. Yeah. अब अगर मैं बुरे काम करता हूँ इसका मतलब नहीं है कि मुझे 5 वक्त की नमाज़ और तहज्जुद छोड़ देना चाहिए. Exactly. बात समझे. That's true. तो बात ये अगर चलो मैं गोल यही होना चाहिए कि इवेंचुअली इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि मैं जो गलत काम करता हूँ वो छोड़ूं. बट आई वुडंट लेट दैट limit you. काम कर रहा हूँ मैं अच्छा काम करूंगा. अगर बिल्कुल, मैं डॉक्टर agreed. हूँ, अगर मुझे गाने का शौक है, छोड़ना चाहिए. सही है. मतलब इन द सेंस में इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, वरना नहीं मतलब नहीं भी छोड़े क्या मसला है. Exactly, like तो सबका वो अपना अलग होता है. लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ, मैं आपको बस माय पॉइंट इज नॉट गाना या नहीं गाना. मेरा पॉइंट है कि कभी किसी चीज को रिस्ट्रिक्ट Constraint नहीं नहीं करने करो. दो कि अगर आप कोई म्यूजिशियन हो, डांसर हो, कुछ भी हो, अगर आपको नमाजें पढ़नी है आप पढ़ो. व्हाई डू यू लेट द अदर, और वो आपका भी लेवल नहीं होता. बिल्कुल. सोसाइटी आपको कंट्रोल कर रही होती है. यार आप डॉक्टर हो तो आपको इस तरह चाहिए, स्पोर्ट्समैन आपको इस तरह होना चाहिए. आपको अगर आप जॉक हो तो आपको दिमाग ही लगाना चाहिए चीजों पे. गेट अवे विद स्टफ. और अगर आप इस तरह के बंदे हो तो फ्लॉस आपको बाकी दुनिया का पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए. Don't ever let anything limit you, especially other people, because what matters is yourself and your individuality. Exactly. Basically. Yeah, 100%. तो मैं ये फुल सर्कल आना चाह रहा था कि मतलब जैसे हमने बात की कि कभी भी सोसाइटी के लेवल से आपको अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहिए. अच्छे बंदे भी हो सकते हो, साथ में बुरे बंदे भी हो सकते That's true. हैं. और यही चीज होती है जो हमें इंसान बनाती है. बिल्कुल. What an amazing thing to say. सही है. 100% agree. तो हर चीज अपनी, लेकिन बात ये कि हर चीज आइडेंटिफाई करनी चाहिए. सबसे बड़ी चीज होती है सेल्फ रियलाइजेशन एंड एनालाइज करना. मैंने एक बात देखी है, जो सारे ऑल द ग्रेट्स एंड ऑल द पीपल हु मेड इट बिग हु वर डिफरेंट, उनके बाद उनकी एक बहुत बड़ी बात होती है उनके अंदर कि वो एनालाइज अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं. That's true. वो अपनी shortcomings देखते हैं, then they get back on it, then they kind of analyze and they try to do better. Yeah. And it's not a singular journey where you just kind of go off it. It's a lot of falling down. It's a lot 100%. of taking those hits. But the point is to keep moving forward. Yep. Now, since I said this moving forward thing, just by the way, it's very unscripted, but here's my ADHD, my superpower. Right? Abhi superpower Using it as a superpower, jumping from 100%. here to here. Yeah. But we're still in the flow. Exactly. We are still making full circle moments, and I think अभी भी जो तुमने बात कही है, जो like completing their जो भी learning वाला aspect, उसमें तुमने ये starting में ये बात mention की थी कि that failure is part of your success. Like अगर आप जितनी दफ़ा fail करते हो, you are learning things from that, and I think ये बहुत compliment करता है with what you just said right now. अब मैं आपको इसी के बारे में जना based on what you said, I would like to really say something else as well. जैसे मैंने बोला don't stop, लास्ट बात जो मैंने की थी, जो अभी आपने बात की है, अब उसका भी सर्कल बनाते हैं. अब लाइफ में मैंने ये सीखा है, देखो ठोकरें आएंगी, हिट्स आएंगी, लेकिन पॉइंट क्या है कि आप चलना नहीं रुकना चाहिए. Never give up. And I'm gonna give you an analogy. Yeah. सही है. The analogy is कि एक तो एनोलॉजी है ये कि मैं दोस्त से बात करते भी कुछ दिन पहले मैंने कहा यार हम लोग जो है लाइफ को बहुत सीरियसली लेते हैं एंड हमें जो है लाइफ को एक वीडियो गेम जैसा खेलना चाहिए. सही है. वीडियो गेम में क्या होता है, इतने सीरियस नहीं होते. आप ऑब्वियसली जाके किसी कुएं में ना कूदो, जैसे GTA Vice City में हेलीकॉप्टर से जंप मारते हैं, वो ना करो, ठीक है, वापस आप स्पॉन नहीं होगे. लेकिन बाकी जैसे लाइफ के गेम्स के अंदर क्या होता है, आप मजा करने के मजा एंजॉय करते हो, बट आल्सो मिशंस भी होते हैं. बिल्कुल. हर GTA Vice City में आपको बिल्कुल ऐसी है, मिशन होते हैं. आपको दिन में ऐसी चीजें होती हैं जो मिशन होते हैं, आपको करने होते हैं. और मिशन आपको पसंद होना हो, आपको करना तो है, आपको मजा आते हैं. एग्जैक्टली. वो सेटिस्फेक्शन मिलती है आपको कंप्लीट करके. क्यों मजा आता है? क्योंकि आप उसको चैलेंज लेते हो. आप कहते हो यार ये मैं करूंगा, तभी मजा आएगा. अब आप लाइफ में क्यों नहीं करते? ये लाइफ में तो आपको काम कोई दे दे, आप कहोगे यार ये तो काम मिल गया. अगर आपका माइंडसेट इस तरह का होगा ना यार कि ये वीडियो गेम है, मैं हर चीज अपने लिए कर रहा हूँ, मजे के लिए कर रहा हूँ,
रहे हो, मजे के लिए कह रहा हूँ, कुछ अगर कोई काम है तो मिशन है, मिशन और मिशन में आपको डिसिप्लिन कभी कोई चाहिए होता है। बिल्कुल, कुछ मिशन आपको वीडियो गेम में पसंद नहीं आते, कुछ मुश्किल होते हैं। Yes. अब मुझे वाईसीटी में याद है वो हेलीकॉप्टर वाला मिशन था, इसमें आप वो फेंकते थे, कोई कर नहीं पाता था। मजा कि सब मुझे सारे मेरे दोस्त मुझे घर बुलाते थे, करवाते थे। अच्छा। तो मैंने इतना वो इतने ज्यादा थे ना, क्यों मुझे अच्छा हो गया ना कि मैं खुद पहले 500 दफा फेल हुआ था, फिर मैंने टेक्निक सीखी थी। मैंने टेक्निक सीखी थी, ये चीज काम करती है। और ये मैंने ये चीजें ना, मैं पता क्या करता था, पहले जब हेलीकॉप्टर से बंदों को मारता था, सबको सारे गन से आ रहे थे, पहले उनको मारता था, फिर जाके मैं प्लान करता। लेकिन टेक्निक मैंने सीखी, बहुत दफा फेल हुआ, फिर मैं बाकी सारे दोस्तों के घर जाके उनके करता था। यही लाइफ को and then they learn from you as well. Exactly. उन्होंने इतनी दफा ट्राई नहीं किया होगा, उन्होंने 50 दफा बुला के बोला होगा यार कि यार हो नहीं रहा है, आप दोस्त को बुलाते हैं। मैं 100 दफा फेल हुआ, फिर मैंने 150वीं दफा मुझे समझ आई, ओ ये तरीका मिल गया। So important, that tells you about life as well. Like कोई completely agree, जिस तरह तुमने बोला कि गेम की तरह अगर लाइफ को लिया जाए, not literally but like अगर logically, तो you can improve on yourself उस तरह से, and you can also take life easy. बिल्कुल। So yeah. अब moving on from there. Yeah. तो taking on from there, like I said, you gotta keep moving forward. Yep. सही है। अब मूविंग फॉरवर्ड के क्या सीन है यार, उसके ये सीन है कि आप जो है ना हमेशा आई वुड से कि जब भी पता है, मैं एक एनालॉजी देता हूँ, मैं नॉलेज अपनी बहुत ज्यादा जो ना, जो अपने अराउंड चीजें देख रहा होता है ना, जो कॉमन, मेरी कोशिश होती है कि मैं आसपास से कोई कोई चीज देखूं और मैं कोई सबक सीखूं या मैं उसको कोई समझूं। सही है। जब भी कोई चीज मैं देख रहा हूं, मैं आपको एक एनालॉजी देता हूं which is obviously something I learned from my life, लेकिन ताकि ऑडियंस के लिए ज्यादा आसान है समझना, just to kind of keep it culturally relevant right now. Okay. जैसे अभी आपने देखा है Stranger Things. Yes. I don't know if you watched it. I did watch it. अच्छा, Yeah. तो उसमें यार आप लाइफ में समझ लो कि आप आगे चल रहे हो, जब आप रुकोगे ना तो पीछे आपके शैडो मॉन्स्टर आ रहे हैं। Okay. सही है, आपके पीछे शैडो मॉन्स्टर आ रहे हैं, अगर आप हल्के हो गए ना वो आपको पकड़ लेगा। Yes. तो आपको हमेशा चलना है। सही है, जैसे विल भाग रहे होते थे ना, तो आपको भी भागते रहना है। और ये सीन है कि अगर आप शैडो मॉन्स्टर ने पकड़ लिया, फिर आपने विल का हाल देखा था, ठीक है, आप डार्क प्लेस में चले गए। तो इफ यू स्टॉप, फिर आप क्या करते हो, पास्ट के बारे में सोचते हो, फ्यूचर के बारे में वरी करते हो। बट इफ यू कीप मूविंग, देन यू आर नॉट वरीइंग अबाउट द पास्ट, यू आर नॉट वरीइंग अबाउट द फ्यूचर, लिविंग द प्रेजेंट, एंड यू आर मेकिंग डिसीजंस ऑन द गो, व्हिच इज हाउ आल्सो आई फील यू कीप हैप्पी। बट हियर इज द थिंग, फिर आप लोग बहुत कहेंगे यार अगर मैं चलता जा रहा हूँ और मैं इतना काम कर रहा हूँ तो बर्न आउट हो जाता है, ब्रेक चाहिए होती है। उसका भी मैं आपको बताता हूँ। ये चीजें मैंने जिस बाय द वे रिसेंट सीखी है, ऐसा नहीं है मैं पला बड़ा ऑफ कोर्स आप वही फेलियर से आप लर्न करते हैं। मैं खुद ही बर्नआउट से इतना सफर किया है मैंने, फिर मुझे समझ आई है कि किस तरह चीजों को how to cope up with it, right? And that's why we are here to discuss it, कि people who are struggling with it still they can take some advice from it and they can learn how to cope up, right? Most definitely. Yeah. So I would say burnout क्या है, अगर आप चल रहे हो, आप कह रहे हो कि चलते जा रहे हो तो मतलब कि रेस्ट करना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए, हम इंसान है, तो मेरे क्या नॉलेज है, आप रेस्ट करो, बिल्कुल करो, सही है, 100 गुना करो, लेकिन आपको जैसे शैडो मॉन्स्टर है, आपके पीछे आ रहा है, सही है, और आपको रेस्ट करना है। तो अब उसका यार ये तरीका, पहले तेज भागो। आप जो है ना, आप अगर आप 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में जा रहे हो, चल रहे हो, शैडो मॉन्स्टर आ रहे हो, वो नॉर्मल पेस है, वो भी पीछे आ जा रहा है, आप भी, फिर आप कहो यार अब क्या सीन है, मुझे क्योंकि ब्रेक चाहिए होगी, तो आप जो है 15 किलोमीटर की स्पीड पे भागो, इतना डिस्टेंस क्रिएट कर लो शैडो मॉन्स्टर फिर आप जब एक दफा पहुंच गए, फिर आप देखो दूर है, फिर आपको ठीक है, अब मैं बैठ के जो ना, अब आपकी मर्जी, आप 5 घंटे की ब्रेक लो, आप 5 दिन की ब्रेक लो, आपके काम पर आपको अपना पता होता है। Exactly. आप ब्रेक लो, फिर आप उस वक्त तक ब्रेक लो जब तक शैडो मॉन्स्टर आपके करीब ना आ जाए। सही है, तो अपने आप खुद अपने आप को टाइम अलॉट कर रहे हैं कि अब मैं 3 दिन या 2 दिन की ब्रेक ले रहा हूँ, मैंने बहुत काम किया, और वो ब्रेक किस तरह की नहीं चाहिए। मैंने ये चीज देखी, जब भी कोई लोग आजकल ब्रेक लेते हैं, they worrying about like अपना काम, still worrying about that, वो ब्रेक ऐसी नहीं चाहिए कि आप बिल्कुल रिलैक्स, आप बोलो कोई सीन नहीं है काम का, I'm just gonna like chill out, I'm gonna relax। और रिलैक्स में भी हर चीज डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट चीजें वर्क करती हैं। some people is going out, hanging out with friends, that's true, some people like traveling, some people just like sleeping in their bed, yes, so that that it's completely fine, जो आपके लिए वर्क करता है, आपके लिए वर्क करता है। और आपको उसमें बात ये सिविलाइजेशन है कि सेट कि आपको फोर्स नहीं करना चाहिए अपने आप को कि वो चीज करने के लिए जो कि आपको पसंद नहीं है, रिलैक्सिंग में, exactly, सही है, रिलैक्सिंग में आप वही करो जो आपको रिलैक्स करती है। लेकिन लाइफ में मैं कहता हूँ हर चीज वो करनी चाहिए, बहुत सारी चीजें करनी चाहिए जो आपको पसंद नहीं है, you should always be going out of your comfort zone। Okay, that's one another point, yeah, but when you're relaxing, when you should be complete ideal बंदा तो वो होगा जो रिलैक्सिंग में भी वो काम करे जो प्रोडक्टिव है। that is the peak of human evolution and the most successful and elevated people, okay, क्योंकि उनको वो चीजें पसंद होती हैं।
वो अपनी हॉबीज भी वो चीजें बनाते हैं जो उनको प्रोडक्टिवली हेल्प करें। जो कहीं ना कहीं से उनको नेटवर्क, आप समझ लो कि मिल रहे हैं दोस्तों से, नेटवर्क कर रहे हैं, तो आप जो है ना उसको बस सोशलाइजिंग कह रही है, उनके दिमाग में क्या है कि नेटवर्किंग है, नेटवर्किंग भी हो रही है, बिल्कुल 100%। सही है ना? तो इवन उनकी हॉबीज और उनके फ्री टाइम के लिए भी वो कोई ना कोई गेम कर रहे होते हैं। But then again, don't force yourself for it. अगर आपका naturally नहीं आ रहा, so that is very, I'm saying that is ideal and no one is, it takes a while। आपको ये भी देखना होता है कि कभी भी आप, मैं जहाँ पे पहुंचा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लाइक wherever I am, सही है, तो वो मैं एक रात या 2 रात में नहीं पहुंचा, बिल्कुल सही है। It's a very slow journey, you have to take steps, you have to kind of stretch yourself, you kind of have to see what works, what doesn't work, and you have to, अगर आप कभी, आप ये भी लाइफ में मैं कहूँगा यार कि कभी अपने आप को शॉर्ट टर्म गोल्स दो जिससे आप कर सकोगे। अगर आप बहुत बड़े गोल्स दोगे ना तो आप कभी आपका दिमाग एक्सेप्ट नहीं करेगा, आप छोड़ ही दोगे। जैसे मैं वर्कआउट में कहता था अपने आप को शुरू में कि बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ जिम जाते हैं, शुरू करते हैं एंड देन वो डाइट पे भी आ जाते हैं, जिम 6 दिन जिम जा रहे हैं 2 घंटे, डाइट छोड़ दो शुरू में, आपको छोड़ दे, बहुत टेक इट इजी, टेक do it baby steps वाला concept ना, baby steps, and सबसे बड़ी बात, do it the way it's like fun for you। Exactly। आपको मजा है, आपको मजा आएगा ना तो वो काम नहीं लगेगा। That's true। And we were discussing this the other day as well कि जहाँ पे you were like it's not mandatory, जहाँ पे लोग दिमाग में रख लेते हैं कि अगर जिम जाना है तो हम 5 दिन जिम जाएंगे, और whether we are tired or anything हम नहीं करना है हर हाल में, it becomes like a very tedious routine, and जहाँ पे आपको मजा नहीं आ रहा because you pointed out the मजे वाली बात। But however you also mentioned कि a person doesn't need to do gym all the time, even if when they do not feel like doing it, you can also alternate it with like other activities, जैसे कि आप फुटबॉल खेल लो जाके या पैडल खेल लो जाके या something like that। It's equally helpful, and because purpose क्या चाहिए होना, आपको physically active रहना है और healthy रहना है, right? बिल्कुल, हम इसी के बारे में कल बात कर रहे थे, and I would reiterate like what I said कि यार मेरे पॉइंट में लाइक हर बंदे का अपना गोल होता है, सही है। फॉर एग्जांपल बॉडी बिल्डर है, अब उसको मसल बनाने हैं या उसको शौक है, सही है, शौक भी अलग होते हैं और जिंदगी के मकसद भी अलग होता है। तो अगर बॉडी बिल्डर है, सही है, उसका 6 दिन जाना, 2 घंटे जिम में रहना, 7 मील्स खाना, प्रोटीन वो बनता है। मुझे पता है कि मैं क्या हूँ, मैं डॉक्टर हूँ या फिर कोई और दूसरा प्रोफेशन है, कॉर्पोरेट जो भी। तो आपका अपने, हर बंदा अपने गोल्स, अपनी, ये एक और पॉइंट है, दूसरों के गोल्स से आपको अपने गोल्स नहीं डिफाइन करने चाहिए, आपको अपने गोल्स खुद ही बनाने चाहिए, खुद बनाने। मेरा गोल क्या है कि यार आई वांट टू लुक गुड, आई वांट टू हैव सम मसल्स, बट आई वांट टू कीप माय सेल्फ फिट। उसमें फिर आप उसके अकॉर्डिंगली गोल्स बनाओ। आप इंटरनेट पे जाके, मैंने देखे हैं जो बच्चे जिम जा रहे होते हैं, वो जाके कोई इंटरनेट में किसी कोच को लेंगे, किसी बॉडी बिल्डर को देखेंगे, एंड इट्स ऑलवेज गुड टू लर्न फ्रॉम द बेस्ट। सीखो सबसे अच्छे से, लेकिन प्लानिंग और गोल्स अपने खुद बनाओ। सीखो सबसे अच्छे से, लेकिन अपनी लिमिट्स, अपने गोल्स और अपना स्केड्यूल आपको खुद बनाना पड़ता है। सो अब लाइक वही बोल रहा हूँ कि ऐसे मेरा ये है कि पहले मैं जा रहा था, पहले मैंने बहुत सारी मेहनत की, 6 दिन गया, 5 दिन गया, तो अब मुझे एहसास हो गया कि यार मेरा प्राइमरी प्रोफेशन क्या है, मैं डॉक्टर हूँ, एंड डॉक्टर तो मैं हूँ, लेकिन लाइक आई सेड मुझे और चीजें बाकी नहीं पसंद है। मैं नहीं चाहता कि मैं जिम जाके उन चीजों को कॉम्प्रोमाइज करूं, बिकॉज़ द पॉइंट ऑफ लाइफ इज टू हैव फन, एंजॉय वीडियो गेम, राइट, एंड टू लाइक नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द थिंग्स। यार अगर आप इतना ज्यादा अपने आप को लाइक अभी मैं देखता हूं सारे पेजेस होते हैं, सिग्मा अल्फा पेजेस, अल्फा एडवाइस, पता नहीं क्या कि वो लिख रहे होते हैं ट्रेन हेवी, लिफ्ट हेवी, ट्रेन हार्ड, गो टू ईट, स्लीप 8 hours, wake up, be disciplined। अच्छी बात है, बट it's like I feel like it's not fun। आपको जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको लाइफ में फन जरूरी है, ताकि मोटिवेशन हो। जब आपका फन नहीं होगा, it's not gonna, you're not gonna be obsessed, of course, you're not gonna be motivated, obsessed with whatever that you do in your life। Exactly, it could be work, if you like whatever it is, it could be anything that you're obsessed with। लेकिन आपका जब फन होगा ना, आपको खुद दिल चाहेगा मैं जिम जाऊं। अब मुझे फॉर एग्जांपल मेरे सीन है कि मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको लाइक बिफोर आई वाज टेलिंग यू, मैं 5-6 दिन जिम जा रहा था, मैं 2 घंटे वर्कआउट रोज करता था, मील्स खाता था 6 रात के 3 बजे उठता था मैं मील बनाने, ये वाला सीन सही है, बिकॉज़ मुझे अपनी 6 मील्स कंप्लीट करनी होती थी, वर्क कर रहा था, तो मैं रात के 3 बजे उठता था, मैं अलार्म लगाता था, और लाइक व्हाइल आई वाज इन मेड स्कूल, ये वाला सीन था। लेकिन it felt too much, right? Makes sense, overwhelming हो जाता है। Exactly, अब ये सीन है, और मुझे एक मेंटल बर्डन होता है जो आपको जो ना आपके साथ रहता है। अब क्या सीन है, अब ये है कि मैं 3 दिन जाता हूँ, डाइट करने का ख्याल नहीं रखता, सही है, लेकिन ऑब्वियसली फिर भी कॉन्शियसली मैं कुछ ना कुछ कर रहा हूँ, सही है। तो 3 दिन जाता हूँ, बाकी मैं क्या करता हूँ, मेरे दिमाग की मेरे गोल मुझे पता है फिट होना है, सही है। अब ये नहीं है कि मैं कोई आर्नल्ड नहीं बनना चाहता, मैं कोई जे कटलर नहीं बनना चाहता, मैं डॉक्टर हूँ, बट आई वांट टू लुक गुड एंड आई वांट टू कीप माय सेल्फ फिट। सो व्हाट आई डू
इज गो 3 days a week. बाकी मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ, एक दिन रनिंग कर लेता हूँ, सही है, एक दिन स्विमिंग कर लेता हूँ, स्विमिंग कर एक दिन मैं फुटबॉल खेल लूंगा, क्रिकेट खेल लूंगा, जो चीजें मुझे पसंद है. Completely different for anyone else. And you know you should always try new things. पता है मैंने जिंदगी में ये किस तरह सीखता है बंदा कि आपको क्या पसंद है, आप चीजें ट्राई करते रहते हो. ट्राई करोगे तो पता चलेगा क्या आपको क्या चीज पसंद आ रही है. Exactly. सही है, मैं भागा हूँ तो फिर मुझे समझ आई ना कि भागना तो अच्छी चीज है, मुझे मजा आता है. मजा आ रहा है. किसी को और को नहीं मजा आएगा, कुछ और चीज ट्राई करे, शायद उसमें मजा आ जाए. पैडल ट्राई कर ले, सही है. अब पैडल ऐसी चीजें मैंने इतनी खेली नहीं है, शायद उसमें मजा आता हो, लेकिन आई डोंट नो बिकॉज़ मैंने ट्राई नहीं की. Exactly. अगर आपको मतलब मैं भी सोच रहा हूँ कि यार हो सकता है दैट्स द थिंग आई एम बेस्ट एट. हो सकता है, but we haven't tried it yet. सही है, तो वही वाली बात है कि आपको चीजें ट्राई करनी चाहिए. That is why I feel experiences are so important. It's very important. That's true, 100%. Now coming to like for all of these things, there's this important concept about sleep. Like लोग कहते हैं कि अगर नींद पूरी नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते because आपका brain is half dead, right? So what's your opinion on कि like कितने घंटे की sleep is the ideal form of sleep? यार देखो, I feel like hot take again. Medical science obviously tells you that 7 hours, 8 hours, or like anywhere between 6 to 8 hours. Even like 10 hours for like older people or like whatever so, right? लेकिन अब मेरा इस पे भी opinion यार ये है कि एक तो just by the way I'd like to make a disclaimer. I'm not talking from a doctor. Like I am a doctor and I'm going to be talking from a doctor's POV, but I'm not representing an institution or specifically a doctor. I'm representing myself as a human. That's true. That's true. सही है, तो मैं एक बहुत generalized भी दे रहा हूँ. अगर आप मेरे पास medical office के अंदर clinic के अंदर बैठोगे ना, शायद मैं आपको कोई advice कोई differently बिल्कुल. सही है, क्योंकि वो मेरा एक professional में that is the way that I'm supposed to give you that advice. I'm going to follow those protocols. Right now, I'm a friend of yours, right? Exactly, 100%. We're good friends. You're speaking from Vakas's point of view, so we want to understand कि तुमने life में क्या exactly क्या learn किया. I feel like पहले जो ना बचपन में मैं बहुत ज़्यादा I was like super I would say like a scientific kind of guy कि मैं साइंस की रिसर्च पढ़ूंगा और मैं बिलीव करता था यार कि अब साइंस ने ये बोला है ना तो इसी तरह ये बेस्ट चीज है, मतलब दिस इज द आइडियल, क्योंकि साइंस ने बोला है. क्योंकि साइंस ने बोला कि I was a strong believer of I would say facts and evidences. But recently, I feel like I just been kind of learning that life has been teaching me there's so much more than science. Okay. And बहुत सारी चीजें होती है spiritual जो हो जाती हैं. It's about the feeling. And you know मैं भी life में ऐसी notice कर रहा होता हूँ कभी कभार like ऐसी चीजें हो रही हैं, things are just kind of aligning themselves with पहले मेरा यकीन होता था यार कि अगर मैं 2 लिखूंगा ना तो 2 ही होगा और 2 के आगे अगर मैं एक लाइन नहीं बनाऊंगा तो नहीं होगी. लेकिन जब से मैंने once I start believing in spirituality and like kind of then I just start seeing it around me. क्या मैं 2 बनाऊंगा ना, वापस आऊंगा, मैं देखूंगा कि 2 तो वही होगा लेकिन किसी ने अगले पेज पे भी 4 लिखा होगा. I'm just giving an example, but और भी कुछ होगा जो कि अलाइन कर रहा होगा उसके Makes साथ. sense. और things will just align. तो मेरा अब यार ये यकीन है कि पहले मैं कहूंगा पहले, और पता है मैं I would say sleep has been something that has been troubling me the most because बचपन से like you know एक तो मुझे सोने का शौक, क्योंकि मैं सोचता था, पता है मेरे दिमाग में बहुत इंटेलेक्चुअलाइज करता था. मैं सोचता था 8 घंटे जो ना आप सो रहे हो आपके जाया जा रहे हैं. सही है, अब देखो आपकी स्लीप है क्या? आपकी स्लीप है सबके मोबाइल की चार्जिंग है. सही है, it's basically charging yourself and your body. काम कर रहे हो अब आइडियली कौन सा मोबाइल अच्छा होता है? कम वक्त लगा चार्ज होने में और ज्यादा चले. बिल्कुल आइडियल मोबाइल तो वही है. मैं भी ऐसा सोचता था, मैं कहता था आइडियली तो यार यही होना चाहिए कि मतलब मैं देखना चाह रहा हूँ कितनी काम कर सकता हूँ, कितना टाइम मैं जाके स्पेंड कर सकता हूँ, क्योंकि सोने में तो आप अपना जिंदगी जा रही है, आपकी जिंदगी बहुत लिमिटेड है. सही है, मरने के बाद तो सोना ही है. बिल्कुल, अगर आप मोटिवेटेड बंदे हो तो आपका सबसे बड़ा टाइम कंस्ट्रेंट होगा. वो क्या होगा? टाइम कंस्ट्रेंट क्या मतलब constraint क्या होगा? Time. Exactly. सही है, अगर आप you know you're actually motivated about life, if you have things to do, if you're obsessed with something, exactly, then you would want more time. in your hands. Yeah, 100%. सही है, तो आप यही सोचोगे मैं किस चीज पे कट डाउन करूंगी ज्यादा टाइम. मेरे तो मैं सबसे पहली चीज मेरे दिमाग में है क्योंकि मैं सोने का मुझे बहुत शौक है. Okay. तो इसलिए मैंने सोचा मैं सोता बहुत हूँ, अब मैं किस तरह कट डाउन करूंगी. ये मेरा बचपन से ही है कि मैं सोचा था यार कि मुझे रात को जागने का भी शौक है. बाय द वे और ना एक गंदी साइकिल बनती थी, मैं सोता लेट था, फिर मैं सोचता था चाहिए भी 8 घंटे की, मैं सुबह उठना भी 7 बजे होता था, तो पूरा दिन मैं बैठा सोच रहा था कि मैंने सिर्फ 4 घंटे की दी है, अब मेरा दिन खराब जाएगा और मैंने स्लीप कम ली है तो मैं रेस्टेड नहीं हूँ. और I mean we talked about it sort of before, but I will still say जब मैं सुबह उठ के सोचता था ना कि अपनी नींद कम है, तो मुझे सांस आता था मैंने पहली अपनी दिन की प्री डेस्टिनेशन सेट कर ली होती थी. मेरा दिन खराब जाता था क्योंकि मैंने सुबह उठ के मेरे दिमाग में ये बात है कि 8 घंटे की नींद होनी चाहिए और मैंने 8 घंटे की नींद लेनी है, और इसमें क्या होगा मैं टायर्ड होगा, मुझे चीजें अच्छी नहीं लग रही होंगी. पहली जस्ट बाय सेइंग इट
just my kind of feeling it, I already decided how my day was going to be. प्रीडिटरमाइंड कर लिया तुमने अपना दिन जस्ट बिकॉज यू वोक अप विद दैट माइंडसेट इवन तो तुम्हारी नींद पूरी होगी विद इन दोस 6 आगे hours. वही वाली बात है, देखो अब मेरा बिलीव ये स्पिरिचुअलिटी में आपको बात की, Yeah, आई yeah. फील लाइक नो वन साइज फिट्स ऑल. Yeah. मैंने यार देखा है जो लोग मोटिवेटेड होते हैं, यहाँ पे बल्कि आप हिस्ट्री के अंदर देख लो, साइंटिस्ट वगैरह, ये जो भी every now and then you will see some discovery where the scientists were working tirelessly for 6 days and 6 nights consecutively. Exactly. And then he came out with like the result. Or on Exactly. even exam के सीजन. लेकिन क्योंकि आपके अंदर जज्बा होता है, क्योंकि आप मोटिवेटेड होते हो और आपका माइंडसेट भी नहीं होता, आज आपके पास चॉइस नहीं होती कि दिन पूरा have लगेगा. any choice बिल्कुल तो आप जो उठ के दिन करते हो जो करना है. 100%. तो आई फील लाइक आप जब सवाल पूछे ना मुझसे कि क्या आइडियल टाइम ऑफ लाइक व्हाट्स द आइडियल लेंथ ऑफ लाइक that brings a restriction to it like एग्जैक्टली. सो आई फील लाइक इट शुड आइडियली साइंटिफिकली तो सही है सही है. जो साइंस बोलती है कि 7 से 8 घंटे, लेकिन यार आई फील है कि अगर फॉर एग्जांपल आज जैसे आज मैं रात में काफी लेट सोया, आज मैं 4 घंटे की नींद लेके पे. उठाऊं. Yeah. अब मैंने उठा, मैंने पहले तो वहां भी आया यार कि मेरी नींद कम है, मैंने कहा खैर हो गई है, कोई मसला नहीं है, नींद कम है तो क्या जा रहा है, उसके बारे में सोचू नहीं. दिन आज मेरा फाड़ू जाएगा, नहीं अच्छा दिन जाएगा, आई एम गोना मेक द मोस्ट ऑफ इट. Yeah. और मैं माइंडसेट के इस तरह, और मुझे नींद नहीं आ रही, yeah और मुझे एक्चुअली और you अगेन don't feel sleepy like that yeah स्लीपी एंड आई नो, मुझे याद भी नहीं था कि मैं 4 घंटे सोया सोया हूं. हुआ. और अगर फॉर एग्जांपल मैं 10 घंटे भी सो जाऊं और मैं उठूं और मैं कहूं यार मुझे 12 घंटे आज सोना था क्योंकि मैंने कल रात ही सोया और 12 घंटे अब भी 10 घंटे भी सोया, तो Yeah. फिर मैं डेज के साथ में बीच में यौन आ रही होंगी, मैं Yeah. एक्चुअली थका हुआ. तो आई बिलीव सही है, स्लीप डज मैटर. इट्स अ बैटरी रिचार्ज पैक, और आपकी बॉडी को रिचार्ज Yeah. चाहिए होता है, लेकिन आपको हर दफा 100% पे नहीं Yes. लगा के, हर दफा आप जो मोबाइल लगाते हो तो 100% पे जाने देते हो क्या? जरूर हर दफा तो नहीं होता 30% भी आप निकाल लेते हो, एग्जैक्टली 40% भी निकाल लेते हो. बिल्कुल बिकॉज यू हैव टू गो समवेयर एनीथिंग कैन बी Exactly. देयर और जब 30% पे आप निकालते हो तो कभी कभार ये होता है कि आप इतना काम 100% पे नहीं करोगे जितना 30% पे, आप ज्यादा फोकस करके मोबाइल पे काम प्रोडक्टिव हो. Yes, आप 30% कोई काम कर सकते 100% agreed. And You it's the also other- circling back to the first thing that you said as well कि mindset shift वाली जो बात है कि आपको अपना mindset इस तरह का बनाना है कि you wake up and you tell yourself that you're not tired and you will have a Now productive day. let's get to the very important point since Okay. we're talking about mindset. Okay. Yeah, I feel like mindset is literally one of the most Important. most important thing Yes. in your life. Agreed. But But hot okay. take. I mean, not a hot take, but like just like a take that I feel I personally realize. Okay. It's not everything. Okay. ये बात आई फील लाइक बहुत सारे पेजेस को पता होती है, मतलब और बहुत लोगों को भी पता होती है कि हाँ माइंडसेट है, दिमाग में कहते हैं ट्रम्प्स एवरीथिंग. Of course. But हियर्स द थिंग. I'm really intrigued to know what's coming. Okay. बट हियर्स द थिंग, आई फील लाइक इक्वली मोर सो आजकल मैंने देखा है कि लोग जो है ना सोचते बहुत है. हम्म. सही है, पर करते काम है. करते काम है. तो माइंडसेट तो आपका सही हो, लेकिन दैट डजंट मीन दैट यू कैन बी सक्सेसफुल Yes. और यू कैन मेक इट बिग और यू कैन डू बिग थिंग्स. आपको ये मेक श्योर करना पड़ता है कि आपके एक्शंस फॉलो करें उस माइंडसेट को. बिल्कुल. सही है. और यही मैं बात कर रहा था, Align I think with मैंने you. आपसे बात कर रहा था yesterday, Yeah. that हम लोग आजकल इतनी जो ना, इवन मैंने एक फेज देखा था कि मैं इंस्टाग्राम में मोटिवेशनल रील्स देखता था रोज Yes. बैठ के. So मैं देखता था important. और Yeah. मैं बहुत खुश होता था. मैं कहता था कि अच्छी चीजें देख रहा हूँ, ब्रेन डॉट तो नहीं है, क्या बात है, Productive हो रहा है. Productive हो रहा है, मैं feel आता है. लेकिन Yeah. 100 रील्स देखता था, एक चीज इम्प्लीमेंट आप देखते थे, मोबाइल बंद करते थे, बस वापस लाइक Yes. मैं तेरी को आई वाज telling Yes, you, आपसे yes. आप एक चीज पढ़ो या एक चीज अपनी लाइफ से सीखो, लेकिन आप इम्प्लीमेंट करो. So That's that's going to be better than better. 1,000 reels and 1,000 things that you need. and then you don't do anything. Exactly. आप Exactly. अगर एक चीज लो ना Yeah. और एक चीज को आप बोले बाकी सब बाहर पे जाकर इम्प्लीमेंट करूंगा, बिल्कुल. तो वो चीज आपको ज्यादा फायदा देगी 100%. लाइफ में कि आप इससे एज कम्पेरेटिव टू कि आप 1,000-2,000 रीलें देखो या Exactly. 1,000-2,000 चीजें, बुक्स पढ़ो, Exactly. मोटिवेशनल बुक्स पढ़ो, या Yeah. फिर कोई आपको बनना, मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये बात. Exactly. मैं आपको कहूंगा इस बात से एक भी चीज बस ले लो. Not- जिस yeah. आपको सब चीजें या कोई सुनने की बात नहीं है. You know, अगर आप लोग हैं, आई फील है कि मैं इसलिए बता रहा हूँ ना, Yeah. I feel like if even I could help change one person's mindset or One just thing, yeah. make one difference in your life, ये मेरे पॉडकास्ट का गोल कंप्लीट हो जाएगा. 100%. That's the objective. तो बस एक चीज आप लेना और आप इम्प्लीमेंट करके खुद देखना, एंड यू डोंट हैव टू इम्प्लीमेंट इट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. जस्ट लाइक see the change, you're gonna start noticing the changes yourself. Yourself, exactly. Right? And मुझे Yeah. आपको बताएं, आप जो ना फिर आप मुझसे नहीं, आप इसलिए नहीं करोगे कि मैंने आपको बताया, इसलिए करोगे क्योंकि you're gonna see the results. Exactly. आप- And apart from yourself as well, I think आपकी surroundings भी आपको बताने लगती है when you are changing as a person as well. No, बिल्कुल. मैंने यार ये देखा कि आपको शुरू में जो ना कोई चीज सीखते हो, तो आपको काइंड ऑफ लाइक आप
सुनी बात पे जाते हो या अपने आपको फोर्स करते हो, when you start seeing the results then you want to do it yourself. Yes. फिर आप कहते हैं ये चीज इतनी अच्छी हो रही है, मैं पागल हूँ अगर मैं चीज इस तरह नहीं करूँ. बिल्कुल. And it's the same as like going to the gym. Starting में आप like अपना पूरी मेहनत कर रहे होते हो, but once you start seeing the results on your body, then it motivates you even further. अगर आपका दिल नहीं भी जा रहा, you will feel like, you know, I want to continue this. So completely agree with that. So Okay. on this note, I would also I want to continue. Yeah, please do, please. Okay. So mindset I said was very important. Yeah. But Hmm. actions I said are Equally equally important. important because आजकल लोग क्या करते हैं, बहुत सोचते हैं काम कुछ करते हैं. बिल्कुल. लेकिन तीसरी चीज भी है. Okay. सही है, तीसरी चीज है lessons. Lessons. And Okay. lessons किससे आते हैं? Analyzing obviously yourself and like whatever's happened in your life. मैंने आजकल ये भी देखा है कि लोग experiences सबके, you know, I feel the number one thing in life that contributes, for example, if I'm confident, right, I would say it's probably because मैंने इतने experience किया है, इतनी ठोकरें खाई हैं, जो भी किया है. तो यार lessons का मेरे लिहाज से ये वाली बात है कि दो चीजें हैं lessons में. एक तो I feel like जैसे मैंने कहा कि lessons आपको किस चीज से मिलते हैं? Experiences से. सही है, आपको सारे lessons experiences से मिलते हैं. बिल्कुल ऐसे ही है. अब दो तरह के experiences होते हैं, आपके होते हैं, दूसरों के होते हैं. दूसरों के होते हैं. सही. अब वो बंदा बहुत ही एलिवेटेड होगा कि जो दूसरे बंदों के एक्सपीरियंसेस सीखे. आई फील एक बहुत मुश्किल बात है. Yes. बंदा सीखता उस वक्त नहीं है तो खुद को ठोकर ना लगे. Yeah, that's आप जो ना, आई वुड से कि अगर आप एलिवेशन का एक ये भी लेवल है कि आप इतने एलिवेटेड हो जाओ कि आप दूसरे बंदों की गलतियों से खुद सीखने लग जाओ. That is true. That's true. लेकिन ये बहुत मुश्किल है यार, बहुत मुश्किल है. मैं आपको मैं इस तरह का बनूं, लेकिन मुझे पता है कि मैं जब तक मैं खुद ठोकर नहीं खाता ना, मुझे खुद जाके आई डोंट टेक द हिट. Yes, तो मैं कुछ सीखता that's true. नहीं. लेकिन अगर आप खुद ठोकर खा के सीख गए, ये भी बहुत बड़ी बात है. That's again Because true. 90%, 99% वो भी नहीं करते. वो भी नहीं सीखते. सही है. आप Yeah. ठोकर खाओगे, अगर सीखेंगे तो गलत चीज सीखेंगे. अच्छा, ये भी बात है. अच्छा. एक्सपीरियंस एक चीज में ट्रांसलेट नहीं होता. इट्स अबाउट हाउ यू परसीव इट. Okay. Yeah, that's true. Yeah. जैसे मैं आपको ADHD की पुरानी बात कर रहा था, मैं कहता हूँ मुझे ADHD, अब मैं इस तरह परसीव करता हूँ यार कि मैं नर्व हो गया हूँ, ये मेरी लाइफ में कंस्ट्रेंट है. Yeah. या मैं ये देख सकता हूँ, अब मैं लेसन ये लिया कि यार आई एम लाइक सुपर चार्ज. Yeah. And you know, I have like this superpower, Yeah. and I'm going to make use of it. The lessons can be here. If someone has abusive, for example, if someone has an abusive alcoholic dad, Okay. either the son, he grows up to become an abusive alcoholic, you know, dad. Exactly, do the who same sons thing, because he saw that growing up, Yeah. and that impacted him. Or if he has the right mindset, Yes. then he could be like, I would never be that, and I would be so much of a better person than my Yeah, dad was. that's true. That's true. तो ये lessons की ये भी चीज होती है, आपको 100%. lesson क्या lesson निकाल रहे हो आप. Exactly. तो it's a trifecta. It's Okay. mindset, second actions, Action and third then lessons. तो बिल्कुल. आपकी तीनों चीजें भलाई होंगी ना, फिर जाके आप एक एक अच्छे like individual बन सकते हो. इंडिविजुअल और आप चीजें करोगे और आप सही राह पे निकलोगे. आप That's बात ये होती है, राय बहुत होती है. Yeah. आप यहाँ भी सकते हो, यहाँ भी सकते हो, यहाँ भी जा Yes. सकते हो, यहाँ भी जा सकते हो. सही है. और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि हर राह कोई गलत होती है, एक ही राह सही है. That's true. बहुत सारी डेस्टिनेशन पे डिफरेंट राह भी जाती है, लेकिन मैं 100%. कहूंगा सबसे स्ट्रेट और जो सबसे आपकी सीधी राय ना, वही वाली है कि आप जब तीनों चीजों को अलाइन करो. So you can tap into the potential that you have and you like are just wasting it basically. एग्जैक्टली. Okay. तो एक लेसन्स पे मैं थोड़ा एक्सटेंड करता हूँ. Sure, sure. Lessons का क्या सीन है? Experiences. और I feel like that is probably something that really I feel like if I feel like I'm sort of different, or if I have something to say on your podcast, if I'm sitting on this chair right now and talking to you guys and expecting you guys to listen to me, why would you want to listen to me? I feel like the one selling point that I really have is experiences. Experiences. So Yeah. मैं इसलिए आपको बैठ के कुछ बता सक रहा हूँ क्योंकि मैंने Like with बहुत एक्सपीरियंसेस दिए हैं और Yeah. इस चीज से मेरी पूरी आयु से मबनी हूँ मैं एक्सपीरियंसेस से. Yeah. मैं हर चीज like you know that's how I started. I really like going out of my comfort zone even if I don't like anything. I'd be like यार try करनी चाहिए. करनी चाहिए 100%. देखना है कि है क्या, मुझे क्यों Yeah. नहीं पसंद है. Yeah, exactly. और सही है, नहीं हो सकता नहीं है. Yeah, exactly. लेकिन आप कुछ सीखोगे. Mm. You're gonna have some more chinks up your armor, right? Yeah. You're gonna have more battle hardened. That's तो और आपके एक्सपीरियंसेस ही होते हैं तरीम आपको, और लेसन्स ही होते हैं जो आपको बनाते हैं. आपकी बस वही वाली बात होती है ना कि जो लोहा होता है वो उस वक्त तक स्ट्रॉन्ग नहीं होता जब तक आग से ना गुजरे. Oh, yeah, सही है. that's true. फुलाद उस वक्त तक नहीं जाता Yes. जब वो आग से ना गुजरे. बिल्कुल. और ये इंसान की पर्सनैलिटी के बारे में ही बात है. आपकी पर्सनैलिटी, आप जितने एक्सपीरियंसेस दोगे आपकी पर्सनैलिटी एलिवेट होगी. बिल्कुल. सही है. आप में तो कॉन्फिडेंस आएगा. 100%. आपका एटीट्यूड दूसरों की तरफ चेंज होगा. बिल्कुल. और यू नो मैंने एक और चीज देखी है कि यू नो आई जस्ट इट्स समथिंग आई प्रॉब्ली फील, और कि आप फॉर एग्जाम्पल बता दूं कि मैंने देखा फॉर एग्जाम्पल इफ यू वेरी कॉन्फिडेंट, Okay. आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, दूसरे लोग आपको कहेंगे ये बहुत एरोगेंट बंदा है या फिर ये उस तरह का है. Perceptions. लेकिन वो क्या होता है,
वो ये होता है कि people are just projecting. सही है, तो आपको देखो एक arrogance अलग चीज होती है, सही है, लेकिन confidence is never bad. Okay. सही है, confidence is what? Believing in yourself. 100%. And I feel like ट्राइफेक्टा तो है. चौथी चीज है लाइफ की सक्सेसफुल एक लाइफ की या फिर कहीं पहुंचने का जो आपका I would say the fourth prong and the fourth thing that separates the greatest from just average It's your people is confidence. self-belief. Self-belief, yes. आपको delusional चाहिए कि मैं जो है ना God has sent me in this room to do something and I'm gonna own this. आप भी basic delusion हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए. ऐसे मैं बताता हूँ, मुझे I would say that alhamdulillah I have a lot of self-belief in myself and that obviously translates to confidence, but that doesn't mean I'm arrogant. I'm very humble. मुझे पता है एक रात में सोने अगले सुबह तो अल्लाह मियां मेरी जिंदगी सब उसकी करम है मुझ पे कि मैं आज यहाँ पर हूँ. एक रात में सो अगले दिन उठूं कुछ भी नहीं हो मेरे पास एंड आई वुड नो यार मुझे ये बिल्कुल बात पता है, सही है, और मैं फिर भी अल्लाह मियां पे शुक्र करूंगा बिकॉज आई बिलीव इन इट. तो मुझे ये पता है कि arrogancy is when you think that मुझे पता है अल्लाह मियां का ऊपर मेरे साया है तो मैं जहाँ भी हूँ उसकी वजह से हूँ. Exactly. But here's the thing कि और मुझे ये बात ही पता है कि मेरे जैसे और भी बहुत होंगे, सही है, और उनको बस अल्लाह मियां ने वो अपॉर्चुनिटीज नहीं दी होंगी या रिसोर्सेज नहीं दी होंगी या वो एक्सपीरियंसेस नहीं दी होंगे. Because they're on a different track. हाँ, मतलब हर बंदे की जिंदगी का जो है अल्लाह मियां ने अलग एक ट्रैक रखा होता है, अलग गोल होता है, अलग लेसन्स होते हैं, अलग डेस्टिनेशन होती है, और आपको ये अपनी जिंदगी का आपको देखना होता है कि मेरे लिए अल्लाह मियां ने क्या चीज क्या चीज अलॉट की भी है, या फिर क्या मेरी if you're not like a believer, हम तो मैं ऐसी रिलीजियस बात डाल रहा हूँ लेकिन you can also take it out of context from religion. Doesn't have to be religious. Makes sense. सही, आपको अपनी लाइफ because I'm a believer, because I'm Muslim, so that's why I'm putting all of these things. लेकिन you could completely just take these out of context and just put it in a general way. कि आप देखो कि आपकी लाइफ का गोल क्या है, आपकी लाइफ का क्या गोल होगा, वो आपकी जिंदगी खुद ही बताएगी, आपकी पर्सनैलिटी आपको बताएगी. Yes. बिकॉज अच्छा मैं कोई बात आपको मैं पहले ये बात कंप्लीट करूंगा, सही है, लेकिन मैं इस बात पे एक बस ऐड ऑन करना चाह रहा हूँ, भूल ना जाऊँ. ठीक है. यार मुझे लगता है कि हर बंदे के इंसान के अंदर जो है ना, हर इंसान के अंदर अल्लाह मियां ने बहुत बैलेंस किया हुआ है. अगर मैं किसी चीज पे अच्छा हूं ना तो मेरे अंदर नर्व भी डाले, मेरी कमियां भी हैं, और आप कोई कम नहीं होता किसी से, कोई भी कम नहीं होता. मैं पैदा हुआ था ना, इफ आई फील मैं बोलूंगा सब लेवल ग्राउंड पर होते हैं. डिफरेंस क्या होता है कि अपनी वीकनेसेस को लोग कैसे लेते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स को कैसे लेते हैं. सही है. फॉर एग्जांपल अगर मेरे अंदर कोई दो आप स्ट्रेंथ्स मिली को आपको कोई लगे मेरे अंदर कोई स्ट्रेंथ्स हैं तो मेरी वीकनेसेस भी बहुत है. अब आपको क्यों नहीं दिख रही? क्योंकि मैंने उन पे काम किया है, या आई हैव काइंड ऑफ एलिवेटेड माय सेल्फ टू अ लेवल वेयर ईदर आई वर्क टू हार्ड ऑन देम और आई एम वेरी गुड इन मास्किंग देम, और आई हैव जस्ट चेंज्ड माय माइंडसेट एंड आई कन्वर्टेड देम इनटू स्ट्रेंथ्स. राइट, ईदर मेरे बिल्कुल साथ में कोई बंदा हो जिसको मेरी तरह बिल्कुल ADHD है, वो क्या यार ये मेरी जिंदगी खत्म हो गई एंड ही नेवर ट्राइज. That's true. That is the difference, right? Yeah. Anyone again, I feel like, और जो बंदा भी मैं ये नहीं मानता कि कोई बंदा जना किसी से काम होता है पैदा होते हुए. मैं बिल्कुल यकीन करता हूँ. फॉर एग्जाम्पल या कोई बंदा कहे कि अगर आप लुक्स आपको लगे कि आपकी लुक्स अच्छी नहीं है, आपकी हाइट बहुत छोटी है, वो आपके अंदर कोई स्ट्रेंथ है जो कि आपको उतना ही सॉलिड बनाती है जितना दूसरा बंदा जो कि 6'4" है. That's true. सही है, 7 फीट है. You just need to figure that out. बस आपको ये देखना होता है कि आप अपनी वीकनेस को आप don't take it personally. Be like, okay, this is where I lack, but I also have something which I can really use to. और मैं truly believe करता हूँ कि अगर बंदा 5'5" हो और दूसरा बंदा 7 फीट हो, सही है, और वो दोनों रेसलिंग मैच में है. अब साइंस तो नहीं कहती कि लाइक वो कोई 5'5" वाला कोई, लेकिन मैं बिलीव करता है कि उसका शायद दिमाग इतना तेज है कि कोई स्ट्रैटेजी बनाए वो, या कुछ करे, या कोई उसकी रिसोर्स, उसके दोस्त इतने, उसकी मैन पावर इतनी हो कि उसके इतने दोस्त हो, उसको अपनी बॉडी की जरूरत ही ना पड़े, वो 10 बंदे बुला ले. सही है. उसके वेपन में मैं ये बता रहा हूँ, आपको देखना होता है कि बाकी चीज में क्या यूज, बाकी चीजें क्या है. अब मेरा फड्डा हुआ है 7 फीट बंदे के साथ, सही है, मैं उसको टेक आउट तो नहीं कर सकता. व्हाट आर माय स्ट्रेंथ्स? डू आई हैव maybe I have more friends than him, maybe you're better at weapons, maybe you are like you're more intellectual, you could figure out a strategy. 100%. लेकिन मैं यकीन करता हूँ हर बंदा इक्वल होता है. बिल्कुल ऐसा ही है. और आपको डिफरेंशिएट क्या करते हैं? आपका माइंडसेट एंड यही वाली बात कि आप अपने आप को विक्टिमाइज ना करो. मैंने ये बात बोली थी शुरू में, because of a coming circle, victimization is your downfall. 100%. Victimhood. ये मेरे ख्याल से जिंदगी के सबसे एक मैंने चीज सीखी है. बुरी चीज भी ना मेरे साथ, आप पता है मैं लाइफ में स्टेज में आई से अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं यकीन करता हूँ कि कोई बेहतरी है इसमें मेरे. Exactly, it taught you something. होता है यार. अब पता है मैंने ये माइंडसेट अप्लाई किया तो मैं I'm not faking it. I genuinely believe it. I agree. That's what I do as well. Yeah. मैंने देखा है, like for example कि कोई चीज बुरी होगी लेकिन 10 दिन बाद जो ना
because of that lesson that I learned Yes. from that thing, Yeah. मेरे साथ कुछ डबल अच्छी चीज हो जाएगी। yes. और मैं खुद कहूंगा, मैंने कहा साइक्स यार, कोई चीज नहीं होती तो आज तो मुझे साथ ये अच्छी चीज नहीं होती, ऐसा ही है, और वो बिल्कुल। बिल्कुल अच्छी होती। और अगर मैं उसी वक्त बैठ के, क्योंकि मैं लेमेंट इतना ज्यादा कर रहा हूँ इस Yeah, बात को, yeah. या उस चीज जो होगी कि मैं लेसन सीखूंगा ही, Exactly. मैं अपने आप को विक्टिम मानूंगा या मैं Yes. बुरा लेसन सीखूंगा। इट्स अबाउट टेकिंग दैट बैड थिंग एंड लर्निंग दैट राइट लेसन। एंड समटाइम्स इट्स ऑल्सो अबाउट अगर आपके साथ कोई बुरी चीज़ हुई है एंड यू, वही वाली बात कि आपने कोई लेसन लर्न करा एंड इट्स ऑन यू कि वेदर यू लर्न इट और नॉट, बट वो अल्लाह ताला या जो भी है, लाइक दे पुट यू इन दैट सिचुएशन बिकॉज मे बी आपकी फ्यूचर में कोई ऐसी सिचुएशन या चीज़ आने वाली है जिसको आपने फेस करना है, मे बी दैट थिंग हेल्प यू टू, दैट थिंग वॉज द पॉइंट दैट विल हेल्प यू टू फेस दैट बेटर, बिकॉज अगर तुमने उससे लेसन लर्न नहीं किया है, तुमने उसको छोड़ दिया, तो वो दूसरी चीज़ भी तुम नहीं हैंडल कर पाओगे। बिल्कुल, that was my entire point, like Yeah. I completely believe in that, Yeah. कि आपका हर चीज, देखो बुरी चीजें होंगी, कोई नहीं रोक सकता, Yeah. और ये चीज होती है डिफरेंशिएट करती है great people from just average people, Yes, everyday yes. Joe, कि वो अपने lessons को लेते हैं and they take it into positive outcomes 100%. and क्या करते हैं, वो ज्यादा लेसन लेते हैं, और ज्यादा Yes. लेसन किस तरह लेते हैं, ज्यादा ठोकरे खा के, Yes, सही है, 100%. ज्यादा हार के ज्यादा लेसन मिलते हैं, बिल्कुल। ज्यादा लेसन मिलते हैं, ज्यादा उनको सबक मिलते हैं, तो जब उनके पास राइट अपॉर्चुनिटी आती है, वही Then लेसन they- को अप्लाई करके Yes. वही अपॉर्चुनिटी उस दूसरे बंदे के पास भी आती है। बिल्कुल सही है, और मैं ये बात भी यकीन करता हूँ, हर बंदे के पास Opportunities होती हैं, how you choose them is the exactly key. मैं I would obviously I would say कि some people are born with a silver spoon, अल्लाह ने ऐसा निजाम बनाया, कोई अमीर घर में हुआ, कोई गरीब घर में हुआ, लेकिन मैं कहूंगा गरीब के पास भी अपॉर्चुनिटी आती है, बिल्कुल सही है, और मैं ये नहीं कहूंगा कि वो डायरेक्ट उसी जाके घर में रहने लग जाएगा 5-2 साल बाद है वो अपॉर्चुनिटी, बट देयर इज ऑलवेज अ वे टू क्लाइंब अप, सही है, बट क्लाइंब ऐसे ये नहीं होगा कि आपके पास कोई गरीब सड़क पे बैठा है, कोई अपॉर्चुनिटी इस तरह की आएगी, कोई बंदा फिर मिस्टर बीस्ट आया, उसने गाड़ी की चाबी फेंकी है, तेरी लैम्बोर्गिनी होगी, बिल्कुल ऐसे सही है, वो अपॉर्चुनिटी छोटी होगी लेकिन इट्स गोइंग टू बी स्टेपिंग स्टोन, Yes, सही है, yes, बेशक yes, आप नहीं, आप उस वाले घर में नहीं रह पाओगे जिसमें वो अमीर बंदा जो सोने के चमचे के साथ पैदा हुआ, लेकिन शायद आपकी 2 नस्लें बाद Exactly. वो उससे भी ऊपर वाले घर में रहे, if you take those opportunities, and that's how generations progress. That's true, वो that's वो true. बच्चा जो सोने के चमचे में पैदा हुआ, वो भी डायरेक्ट मतलब उसके भी अब्बा ने कुछ किया होगा या उसके दादा ने कुछ किया होगा, that's why he was able to exactly. तो कहीं ना कहीं आपको लाइफ में you have to make someone in your life or someone from your generation, Yeah. someone with past generation Yeah. has taken an incentive or a choice that puts you where you that are. elevates you, makes sense. Exactly. और मैं तो अपनी जिंदगी को इस तरह देखता हूँ कि मेरे सारे एंसेस्टर्स हैं ना, उन्होंने सारी गलतियों से, सारे सबक से, आई एम द पिनिकल, अब बोले कि बेटा ये सब कर लिया, अब तू हमें देना, you are the one who's ये done it. mindset, Yeah. it's probably a delusion, it's probably not true, but it helps me, and It it helps is you the with- mindset that truly great people have. They Yeah. believe they were born for something, Yes. and they believe that like because I- purposeless life क्या है? हाँ, और Then it's delusion like- is good. If Yeah. it's working for you, then it's not like In you your have to favor, become- yeah. आपको जैसे मेरी बात हुई थी पहले, मैं साइंटिफिक था, मैं कह रहा कैसे हो सकता है यार कि मेरे कोई 1000 नस्लें थी और मैं ही उस नस्ल में वाला बंदा हूं जो पूरी हिस्ट्री चेंज करेगा अपनी फैमिली की, Yes. या वो करेगा, लेकिन मैंने अब यकीन करने लगा कि हर चीज साइंस नहीं होती, बिल्कुल। स्पिरिचुअलिटी शायद मैं हूँ, and I have to kind of believe that Yep, कि yep. मैं बोला मेरी पूरी सारी जनरेशन, सारे एंसेस्टर्स का पिनिकल हूं मैं, कि उन सबकी बुराइयां, सबके सबक Yeah. आके मुझे पैदा किया, and I am to like kind of elevate that charter and Makes put it on sense. the map. Yeah. सही है, तो and it's a good thing, right? Yeah. Like it like helps me achieve more. It helps my mindset because I'm motivated, because it will get there. It makes me believe. और दुनिया में हमेशा मैं एक और बात बताऊंगा, तेरी वही लोगों ने सक्सीड किया जो डिल्यूजनल होता है। बिल्कुल ऐसा ही सही है, ये That's true. डिल्यूजन, ये मुझे याद है, I think Steve Jobs की जो एक वीडियो है उसके अंदर भी वही कहता है ना, like the crazy ones something like I don't remember it मेरे exactly. लाइसेंस में मैं पढ़ता था, तो मेरा एक कोड था लाइसेंस के बिल्कुल एंटर होता था, तो there was this क्या नाम है, एक पेंटिंग थी और वो बस उन्होंने पता नहीं लगाई थी, बट आई फील लाइक आई वांट टू से थैंक यू टू द प्रिंसिपल मिसेस अहमद नाम होता था, तो शी जस्ट लाइक आई जस्ट रेड इट, आई फील लाइक आई लिटरली रिमेंबर, मैं हर दिन जाता था ना, सुबह मैं पढ़ता था, मैं ऑब्जर्वेंट हूँ थोड़ा, सही है, तो आई फील लाइक किसी ने आधे 99% बच्चे ने कोई देखा ही नहीं होगा, इग्नोर करते, एक छोटा सा बोर्ड होता था, इसमें लिखा था कि it's the crazy people in the world, is the people that are crazy enough to believe they can change the world that are actually the ones that change the world. That's actually the line जो Steve Exactly, Jobs तो की वो है. आप जो बात करते हैं वो कोड लिखा हुआ था, Yes, और मैंने yes, वो yes, पढ़ा, yes, तो yes. मैंने कहा साइक्स, that's Yeah, true, yeah. ठीक है, जो बंदा, और जो ना मतलब आधे लोग तो कहेंगे इम्पॉसिबल है, Yeah. सही है, कि कुछ चीज देखेंगे कहेंगे यार इम्पॉसिबल तो वैसे कुछ भी नहीं होता मेरे लिहाज से, जब तक आपका माइंड रिस्ट्रिक्शन प्लेस करता है, You restrict yourself to things. Yeah. देखो मुश्किल, अगर कोई 100 बंदे ने किया, अब तो मैंने देखा कि कुछ 10-15 बंदे लाइक कुछ चीज किए होंगे, फिर भी आपको इम्पॉसिबल है, Yeah. किसी इंसान ने की भी है ना, तो Possible तो है, ही सही बात। सही है, अगर किसी ने पहले किया हुआ है, Yeah. अगर आप बोले मैं 15 मिनट सांस रोक के बैठूंगा, Yeah. अगर किसी ने किया हुआ तो पॉसिबल है,
बट तो भी वो भी इंसान ही है ना, Yes, yes, किसी yes, तरह yes. पहुंचे, आप ऐसे भी कर ही है, सकते हो, 100%. तो इम्पॉसिबल तो है ही नहीं, बिल्कुल. सही है। अगर किसी नहीं भी की हुई हो फिर भी आप करो, बिल्कुल. आप वो करो, You make it possible, yeah. एग्जैक्टली। तो बात यही है कि और अगर इम्पॉसिबल, अगर आसान चीज हो तो करने का फायदा, मजा क्या है? मजा नहीं है, बिल्कुल. आप लाइफ में चैलेंजेस होते हैं, उसी में तो 100%. मजा आता है। ऐसे ही है. इफ इट्स इजी देन लाइक वेयर इज द फन इन If it's easy, everyone would be doing it वाला scenario. राइट, Yeah. फन का है फिर, अगर यार आसान काम है तो मजा Yeah. का है इस चीज ऐसा है. में? मजा तो उसी में आता है ना जो ऐसा काम आप करो, एंड आई फील लाइक या लेजिट लाइक यू नो उसी चीज में मजा आता है, और आपकी पर्सनालिटी और आपकी लाइफ उसी चीजों से एलिवेट होती है। Elevate होती है. वही बड़ी बात आ बिल्कुल. गई, लोहा फुलाद जो होता है वही उसी तरह आग से निकल के ऐसे ताकतवर you make your individual personality through that things. बिल्कुल. Those things. Now, Vikas, thank you so much. हमने I think over the time जो पूरा हमने 1 घंटा लिया है उसके अंदर हमने बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों के ऊपर बात करी, and we have been coming full circle moments हम पूरी conversation में करते रहे हैं, and I would just want you to like wrap it up in this way कि आप इसको summarize करो जो भी सारी चीज़ें बोली हैं, but also give one really good advice to anyone who has actually watched it till the end and they can take out this lesson. So what would that be? यार आई थिंक मैंने काफी बातें बोली एंड ऑल ऑफ देम आई फील लाइक वर ट्रूली important That's in true. my life as Yeah. a fact about what I preach and what I follow. Yeah. So even if you take one thing out of it, Yeah. I feel like you could just make that the entire summary and I would still be happy Agreed. and just apply it. Just apply it. And like, you know, if you could ever find me on Instagram or anywhere, just let me know if it actually helped you. For sure. I will be tagging your account Yeah, as sure. well. And if anybody wants some help in regarding any aspect of their life, whether it's medical or non-medical, you can reach out to Vikas. I'm sure Vikas would be more than happy to help you guys out as well. So thank you once again for coming to the podcast and doing this with us. लेकिन आपको मैं बताता हूँ, I'm gonna tell like Sure. सही दो बातें। एक तो है पहले मैं एक ही पॉइंट जो मैं पिछली दफा खत्म नहीं कर पाया था मेरे दिमाग में, मैं वो एक्सटेंड करूंगा। Okay, sure. सही है, ऑन लाइक इन समरी का वे, अच्छा। जैसे मैं बता रहा था जो कॉन्फिडेंस वाली बात थी कि लोग जो है ना, अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो तो आपको क्या कहते हैं कि आप एरोगेंट हो, राइट? बट आई लाइक आई सेड इट्स सेल्फ बिलीव। लेकिन यार ये चीज होती है कि लॉट ऑफ पीपल दे जस्ट प्रोजेक्टिंग। अगर वो बंदा खुद आपको देखे ना, वो खुद इनसिक्योर हो अंदर से, अपने आप में बिलीव नहीं कर सके, तो आपको लेके दूसरे को बोलेगा एरोगेंट बंदा है। लेकिन यू नो अगर आपको पता है आप सही राह पर हो, या फिर यू व्हाट यू बिलीव इज ट्रूली मोरल एंड यू स्टैंड फॉर इट, देन यू शुड नॉट लेट अदर पीपल्स लोअर स्टैंडर्ड्स हिंडर योर ओन स्टैंडर्ड्स। अगर और नीचे तो आप ये नहीं कहोगे मैं इसको, यू शुड नॉट become little. That's so important. For others. Yep. उनको आप क्या करो, उनको हेल्प करो to get up. आप बोले ऐसे ही है, that's so true, but most of the people do not do that because they're very selfish as well. Exactly. अब मैं आपको इसी बात बताऊंगा। मैंने एक और चीज देखी है, मैंने देखा यार, मतलब देखा कि एक्सपीरियंस मुझे खुद ही अपनी लाइफ में भी मेरे ख्याल से मैंने फील किया, मैं अपनी लाइफ का बोलता हूँ ताकि बिकॉज आई फील है कि दूसरों पे रखूंगा तो इट वुड बी लाइक यू नो टू लाइक ओके लाइक जर्नलिस्ट। यार मैंने देखा जब मैं लाइफ में बुरी जगहों पे था ना, जब मैं वाज इन बैड प्लेसेस, माय लाइफ इतनी अच्छी नहीं थी, तो यही वाली बात थी कि आई वाज लाइक हेटिंग ऑन अ लॉट ऑफ पीपल कि मुझे ना लोग कुछ, मैं कुछ देखता तो कुछ समझ नहीं आती, मैं कहता था यार कि नहीं यार ये बंदा सही। लेकिन जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जगह पर होता ना, मैंने कहा इस दिल में कोई हेट ही नहीं है, मेरे दिल में सिर्फ प्यार है। मैं किसी को कुछ यू नो इफ आई सी समवन नॉट डूइंग सो वेल और इवन हिटिंग ऑन मी, आई लाइक यार आई विश मैं तुम्हें कुछ सिखा सकूं, मैं तुम्हें हेल्प कर सकूं ऊपर आने में, या फिर अगर तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम है आई कुड हेल्प यू विद इट, एंड दैट इज समथिंग दैट इज शेयर्ड बाय एवरीवन हु इज लाइक यू नो अचीव समथिंग इन देयर लाइफ। इवन एथलीट्स को देखो जो सबसे टॉप पर होते हैं, वो कभी भी लुक डाउन नहीं करते, वो कहते हैं they bring people up, वांट टू हेल्प पीपल। Yes, 100%. एंड यू नो यू वांट टू हेल्प पीपल एंड यू वांट टू लाइक सी देम get to the top as well. That should be the approach. और एक और बात ये है कि आपके दिल में you know आप समझी की बात कहते हैं, मैं ये कहूँगा प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है। सही है, सिर्फ अपने आप से नहीं, अपने आप से तो बहुत जरूरी है। आप पता है क्या बात है तेरी, जब आप अपने आप से प्यार नहीं करते ना, दूसरों से नफरत करते हो। सही है, आप जब एक दफा अपने आप से प्यार करने लगोगे, आप दूसरों के साथ भी प्यार करने ये तुमने आई थिंक द पूरी पॉडकास्ट की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी ना इज दिस वन। हाँ, तो ये जो ना आपने समरी बोली थी, मैं आपको ये बात बोलूंगा, जब आपका जिंदगी के वो मुकाम था ना मेरा, जब मैं अपने आप से इतना प्यार नहीं करता था, तो मैं बाकी लोगों से भी नफरत कर रहा था। जब अब मैं अपने आप से प्यार करता ना, तो मैं किसी को कम भी देखूं, किसी को मुझे लगे यार कि वो मेरे साथ गलत कर रहे हैं, मैं कहूँगा आई विश आई कुड टीच यू समथिंग बेटर, और मैं चाहूंगा कि आप भी मुझसे प्यार करो, मैं भी आपसे प्यार करूं। नफरत में कुछ नहीं रखा, नफरत में क्या रखा है, आप अपनी एनर्जी ड्रेन कर रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही है। आप अपने स्पेस, दिमाग में किसी को स्पेस ही कितनी दे रहे हो कि आप ऑलमोस्ट लाइक फाइटिंग योर ओन सेल्फ। एग्जैक्टली, आप कितनी एनर्जी ड्रेन कर रहे हो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज लाइफ में एनर्जी होती है, आपको अपनी एनर्जी आप रखनी होती है, आपको अपनी एनर्जी को नेगेटिव नहीं करना होता, आप पॉजिटिव रखनी होती है, और आपको दूसरों से भी, you should always also surround yourself with people who are positive, which you just mentioned कि आपका environment कितना important होता है आपके लिए। बिल्कुल, तो वही वाली बात है कि आप जो है ना
अपनी एनर्जी का ख्याल रखो और इफ यू फील लाइक समवन इज डूइंग रॉन्ग टू यू, इसके ये मतलब नहीं है कि आप और गलत करो। पहले मैं शायद ये करूंगा, मेरा माइंडसेट पहले ये था कि इसने मुझे किया है, अब देखो मैं क्या करता हूं। अब पता है इस लाइफ पे स्टेज पे आके मैं कहता हूं अल्लाह इसको हिदायत दे, या फिर अगर मुझे कभी मौका मिले ना मैं दे दूंगा। सही है, हिदायतों की बहुत तरीके होते हैं, शायद ज्यादा कुछ मिले तो और तरीके से लेकिन वो अच्छी जगह से होगा। It will be coming from a good place. दर्द के लिए नहीं होगा। मैं कहूँगा अगर चलो I'm not going to say but generally jokes apart, but you get the message. Yeah, for sure. कि यही वाली चीज़ है कि I genuinely want people to do good, and once you reach that place, जब आप अपने आप से खुद प्यार करने लगोगे ना, तो आप यही चाहोगे कि दूसरे भी अपने आप से प्यार करें सबसे, और दुनिया प्यार से ही चलती है। The world can exactly, humanity किस चीज़ का नाम है, इसी चीज़ का नाम है। But thank you once again, Waqas, for coming today and doing this with us. Towards the end of my podcast, I make every guest of mine do this. If you're willing to do this as well, we just have to look in the camera, point out like this, and say, "Keep watching One on One by TB." Can you do it? On this camera, or that? Sorry, in your camera. In Say okay. So keep watching One on One by but TB. we will do it on the count of 3. Okay. Okay. 1, 2, 3. Keep watching One on One by TB. Thank you so much.